જય જિનેન્દ્ર. પર્યુષણ પર્વનો આજે ત્રીજો દિવસ છે. અંગૂઠે અમૃત વસે લબ્ધિ તણા ભંડાર, શ્રી ગુરુ ગૌતમ સમરીએ વાંછિત ફળદાતાર. આત્મજાગૃતિ પર્વના આ ત્રીજા દિવસે સૌપ્રથમ આપણે સૌ જોનીભાઈના કંઠે સાંભળશું આજે મહાવીર કેવળ જૈનોના નહીં, રામ કહો રહેમાન કહો અને મહાદેવ બત્રીસી જે હેમચંદ્રાચાર્યએ રચી છે એના કેટલાક શ્લોકો. તો આવો સૌપ્રથમ સાંભળીએ જોનીભાઈ શાહને. શ્રી શાંતિલાલ શાહ રચિત સૂર્ય ચંદ્ર આકાશ પવનને વર્ષા જેમ બધાના છે, મહાવીર કેવળ જૈનોના નહીં પણ આખી દુનિયાના છે. સૂર્ય ચંદ્ર આકાશ પવનને વર્ષા જેમ બધાના છે, સૂર્ય ચંદ્ર આકાશ પવનને વર્ષા જેમ બધાના છે. મહાવીર કેવળ જૈનોના નહીં પણ આખી દુનિયાના છે. મહાવીર કેવળ જૈનોના નહીં પણ આખી દુનિયાના છે. જન્મ ભલે ને અહીં લીધો પણ જ્યોત બધે ફેલાવી, જ્યોત બધે ફેલાવી. જન્મ ભલે ને અહીં લીધો પણ જ્યોત બધે ફેલાવી, જ્યોત બધે ફેલાવી. સૂર્ય ભલે ને અહીં ઉગ્યો પણ પ્રકાશ છે જગવ્યાપી, પ્રકાશ છે જગવ્યાપી. સૂર્ય ભલે ને અહીં ઉગ્યો પણ પ્રકાશ છે જગવ્યાપી, પ્રકાશ છે જગવ્યાપી. પ્રાણી માત્રના પ્યારાય પૈગંબર માનવતાના છે, પ્રાણી માત્રના પ્યારાય પૈગંબર માનવતાના છે. મહાવીર કેવળ જૈનોના નહીં પણ આખી દુનિયાના છે. મહાવીર કેવળ જૈનોના નહીં પણ આખી દુનિયાના છે. સત્ય અહિંસા પ્રેમ કરુણા ભાવ છે મંગલકારી. સત્ય અહિંસા
પ્રેમ કરુણા ભાવ છે મંગલકારી, અનેકાંતની વિચારધારા સર્વ સમન્વયકારી, અનેકાંતની વિચારધારા સર્વ સમન્વયકારી, પતિતને પાવન કરનારા પાણી જેમ ગંગાના છે, પતિતને પાવન કરનારા પાણી જેમ ગંગાના છે, મહાવીર કેવળ જૈનોના નહીં પણ આખી દુનિયાના છે, મહાવીર કેવળ જૈનોના નહીં પણ આખી દુનિયાના છે. વિરાટ એવા વિશ્વ પુરુષને વામન અમે કર્યો છે, વામન અમે કર્યો છે, વિરાટ એવા વિશ્વ પુરુષને વામન અમે કર્યો છે, વામન અમે કર્યો છે, વિશાળ એના વિશ્વ ધર્મને વાડામહી પૂર્યો છે, વાડામહી પૂર્યો છે, વિશાળ એના વિશ્વ ધર્મને વાડામહી પૂર્યો છે, વાડામહી પૂર્યો છે, જીવનના જ્યોતિર્ધર એ તો જગના જ્ઞાન ખજાના છે, જીવનના જ્યોતિર્ધર એ તો જગના જ્ઞાન ખજાના છે, મહાવીર કેવળ જૈનોના નહીં પણ આખી દુનિયાના છે, મહાવીર કેવળ જૈનોના નહીં પણ આખી દુનિયાના છે, મહાવીર કેવળ જૈનોના નહીં પણ આખી દુનિયાના છે. અવધૂત આનંદગંજી રચિત રામ કહો રહેમાન કહો કો કાન કહો મહાદેવરી. राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी, राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी, पारसनाथ कहो को ब्रह्मा सकल ब्रह्म स्वयमेवरी, पारसनाथ कहो को ब्रह्मा सकल ब्रह्म स्वयमेवरी, राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी, राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी.
भाजन भेद कहावत नाना एक मृत्तिका रूपरी। भाजन भेद कहावत नाना एक मृत्तिका रूपरी। तैसे खंड कल्पना रोपित आप अखंड स्वरूपरी। आप अखंड स्वरूपरी। राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी। पारसनाथ कहो को ब्रह्मा सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी। राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी। निज पद रमे राम सो कहिए रहीम करे रहमान री। निज पद रमे राम सो कहिए रहीम करे रहमान री। कर से कर्म कान सो कहिए कर से कर्म कान सो कहिए महादेव निर्वाण री। राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेव री। राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी। पारसनाथ कहो को ब्रह्मा सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी। राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी। पर से रूप पारस सो कहिए ब्रह्म चिन्हे सो ब्रह्मरी। पर से रूप पारस सो कहिए ब्रह्म चिन्हे सो ब्रह्मरी। यह विद साधो आप आनंदगन यह विद साधो आप आनंदगन। चेतनमय निहि कर्मरी चेतनमय निहि कर्मरी। राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी। राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी। पारसनाथ कहो को ब्रह्मा सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। पारसनाथ कहो को ब्रह्मा सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी। पारसनाथ कहो को ब्रह्मा सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी। पारसनाथ कहो को ब्रह्मा सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। કલિકાલ સર્વજ્ઞ આચાર્ય હેમચંદ્ર સુરેશ્વરજી રચિત મહાદેવ બત્રીસી એમાંથી ત્રણેક શ્લોકોનું ગાન કરીશું. महारागो महाद्वेषो महामोहस्तथैव च कषायश्च हतो येन महादेव स उच्यते.
अकारेण भवेद्विष्णु रेफे ब्रह्मा व्यवस्थितः हकारेण हर प्रोक्त तदन्ते परमं पदम्। भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। જોનીભાઈના મધુર કંઠ પછી એક અનેકાંતની જુદી ભૂમિકા આજે રચાય છે અને આજનો આપણો વિષય પણ જરાક વિશિષ્ટ છે. આજે વિષય છે ચાલો સમ્યક દ્રષ્ટિ વિકસિત કરે અને જેના વિશે વાત કરવાના છે વલ્લભભાઈ ભણસાલી. આદરણીય શ્રી વલ્લભભાઈ ભણસાલીનું નામ ભાગ્યે જ કોઈ ભારતની લોકોમાં કોઈને ન ખબર હોય કે પછી ભાગ્યે જ જૈનોના ઘરોમાં તો તેઓ ખૂબ જ જાણીતા અને અતિ પ્રિય એવા વક્તા છે. વલ્લભભાઈ ભણસાલી એક એવું વ્યક્તિત્વ છે જેમને જૈન ધર્મની તાત્વિક વિચારણાઓનો ખૂબ ગહન અભ્યાસ કર્યા પછી એને એક્સપેરિમેન્ટલ બેઝ ઉપર મૂકવીને બહુ સરસ રીતે યુવાનો સુધી, અનેક લોકો સુધી, સમાજની અનેક વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચવાનો જુદો જ પ્રયાસ કર્યો છે. વલ્લભભાઈનો થોડોક પરિચય આપવાનો પ્રયત્ન આપ સૌ સમક્ષ કરું છું. વલ્લભભાઈ इनाम ग्रुप ना को फाउंडर અને चेयरमैन છે. आज वो अपनी बात हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में रखेंगे, इसलिए मैं भी प्रयत्न करूंगी कि कुछ उनके बारे में हिंदी में बताओ. तो रेप्यूटेड इन्वेस्टमेंट हाउस एंड फॉर्म इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ वो जुड़े हुए हैं. ही हैज सर्व मैनी पॉलिसीज मेकिंग बॉडीज इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वल्लभ भाई ने विपश्यना जो मेडिटेशन है उसके प्रति काफ़ी डिवोटेड है. करीब 30 सालों से उनके साथ वो जुड़े हुए हैं और फिलहाल वो फॉर्मली द चेयरमैन ऑफ ग्लोबल विपश्यना जो फाउंडेशन है उसके चेयरमैन भी है. साथ ही में उन्होंने मिलकर 50 वर्षों की ये जो विपश्यना की जर्नी है उसके बारे में एक फिल्म भी बनाई है. एंड रिसेंटली द अल्ट्रा मॉडर्न मल्टीमीडिया म्यूजियम पेगोडा की साइट पर बनाया हुआ है. खास करके वो म्यूजियम आचार्य गोयंका की स्मृति में बना है. ही इज अ वॉलंटियर ऑफ आई स्पिरिट, अ साइलेंट मूवमेंट ऑफ भारत, वेरी टैलेंटेड टू शेप द एडवांस फ्यूचर फॉर अ कंट्री. जो भारत के आगे जाने वाले नागरिक हैं, हमारे फ्यूचर है, उनको शेप करने के लिए, उनको खास प्रकार से उसकी और मोड़ने के लिए उन्होंने इसकी स्थापना की है. और साथ में काफ़ी ऐसी लीडिंग NGO है जो उन्होंने इन्वॉल्व भी की है और उसमें उस चरित्र विकास, उनकी पॉलिसी मेकिंग, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी आदि को किस तरह से बाहर लाया जाए उसके प्रति उनका प्रयत्न रहता है. He is a founding member of Governing Board of India, Pioneer Liberal Art University, FLAME के, and ISPP, a reputed public policy educator वो है. सत्य विज्ञान फाउंडेशन. सत्य विज्ञान फाउंडेशन एक उनका बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अलग तरीके का कह सके ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया के कुछ लीडिंग विचारक जो है, थिंकर्स है, उनके साथ उन्होंने बात की है, इंटरव्यूज़ किए हुए हैं और उनका फोकस मेन रूप से ब्रिंगिंग जो इंडिया का अनमैच्ड हेरिटेज है, उसका जो नॉलेज है, उसको आज के संदर्भ में मॉडर्न मेटाफर के साथ किस तरह लाया जाए उस दिशा में उन्होंने कार्य करने का प्रयत्न किया हुआ है. ही इंस्पायर्ड अ कोर्स ऑफ सम्यक्त्व, अ राइट नॉलेज एज अ फाउंडेशन ऑफ अ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. आपके स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास के लिए सम्यक दृष्टिकोण की अत्यंत आवश्यकता है और एक अलग प्रकार के कोर्स के उन्होंने संरचना की है और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनको चारों ओर से प्राप्त हुआ है. जैन समाज में इंक्लूडिंग नॉन जैन समाज में भी
सिर्फ मुंबई में नहीं किंतु भारत के अलग अलग विस्तारों में ये शिविर का आयोजन किया गया था। 2 दिन की, 3 दिन की, इस प्रकार से काफ़ी दिनों तक की भी शिविर का आयोजन किया। 1 दिन की शिविर का भी आयोजन वे करते हैं और उसमें वो आमने सामने सवाल भी होते हैं और साथ में अपनी अंदर की जो विकास यात्रा है उसकी और यहाँ केंद्र रूप से ध्यान दिया जाता है। ऐसे तो वल्लभ भाई आप जानते हैं कि सीए है, अकाउंट से जुड़े हुए, और उनको हॉल ऑफ फेम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। ऑनररी वो डॉक्टरेट है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से उनको वो भी प्राप्त हुआ है। तो एक तरफ से फाइनेंस और मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए वल्लभ भाई आत्मिक मैनेजमेंट के साथ भी जुड़े हुए हैं। आत्मविकास, आंतरिक शुद्धता के प्रति वो निरंतर जागरूक रहते हैं और इसी दिशा में वो निरंतर कार्य करने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए सुनते हैं वल्लभ भाई को, चालो सम्यक दृष्टि विकसित करें। वल्लभ भाई भंसाली। नमस्कार, जय जिनेंद्र। एक्चुअली तो मुझे जय सत्येंद्र कहना और भी अच्छा लगता है, लेकिन उसका आग्रह नहीं करते। आज का विषय सत्य को लेकर है, तो हो सकता है हम जिनेंद्र से शुरू करते और सत्येंद्र तक पहुंच सकेंगे। मेरा एक अनुभव रहा है कि जब जब पर्यूषण के प्रसंग पर कुछ बात करने का मौका मिलता है, या कह लूँ कि जब जब कोई ऐसा विषय हो जिसमें कोई जैन प्रत्यय या विसर्ग लगा हो, तब भी करीब करीब वैसा ही अनुभव होता है। पर्यूषण के समय तो हमारा समाज कुछ ज़्यादा ही जैन बन जाता है, इसलिए ज़्यादा देखने को मिलता है। वो देखने को क्या मिलता है कि अधिकांश श्रोता, अधिकांश अर्थात लगभग करीब करीब 90% लोग ऐसे विषय पर, ऐसे समय पर, ऐसे प्रसंग में यही देखने सुनने आते हैं कि हमारी परंपरा क्या है, या हम अपनी परंपरा को जैसा जानते हैं, मानते हैं, उसको साधते हैं, पालते हैं, उसके अंदर हम और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उनमें बहुत छोटा सा एक वर्ग होता है ऐसे श्रोतागण में, जो इसके आगे पूछना चाहता है, जानना चाहता है कि वाकई सत्य क्या है, ये जो परंपरा है उसका आधार क्या है। और भगवान महावीर ने क्या हमें परंपरा बताई, या परंपरा के साथ में उस सत्य को बताया, और हमें क्या करना है। अब इसके बारे में कई मान्यताएं हो सकती है कि ये तो युग ऐसा है, युग वैसा है, लेकिन हमारी यात्रा तो युगों से परे है। कई युगों से यात्रा कर रहे हैं अगर हम परंपरा को मानते हैं तो क्या हमारी दृष्टि भी उस परंपरा का जो युग होगा उस युग में वो स्विच ऑन हो जाएगी? मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं देखता हूँ कि कुछ लोग सत्य के शोध में रहते हैं, परंपरा की बात सुनते भी हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन उनका एक मस्तिष्क का हिस्सा, उनके जहन का, उनकी मानसिकता का एक भाग होता है जो उसके परे जाता है, परे जानना चाहता है। यही तो कहानी है हमारी शास्त्रों के आधार की, कि ऐसा ही एक बुद्धि संपन्न, बोधि संपन्न, लब्धि संपन्न व्यक्ति पूछ बैठता है, किम तत्तम, भगवान सत्य क्या है। तो आज कोशिश करते हैं कि हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करें, और सत्य प्रेमी लोगों को बात कुछ ज़्यादा अच्छी लगेगी, उससे वे जल्दी से संबंध बना पाएंगे, और बहुत ही बढ़िया बात होगी कि हम परंपरा के साथ साथ उस सत्य की महिमा को समझकर कि किम तत्तम की बात को भी जाने समझें। एक उदाहरण की तरह एक उदाहरण लेते हैं हम
कि दर्पण तो हम सब देखते हैं। अब दर्पण देखने में मुझे 4 प्रकार के लोग समझ में आते हैं। एक तो हम दर्पण में देखते हैं और तुरंत अच्छा बुरा लगता है और हम उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। कपड़े पहन के देखते हैं, अरे अच्छा नहीं है, छोड़ो इसको, दूसरा बदली करो, या ये ठीक से नहीं है, इसको ठीक ठाक करो। ये चेहरा देखा, अरे चेहरे में कुछ बाल रह गए दाढ़ी करते हुए, या किसी की हेयर स्टाइल की हुई है तो 2-4 बाल इधर उधर हो गए, उसे ठीक करें। तो कुछ बुरा लगा, कुछ अच्छा लगा, तो एक मुस्कुराहट आती है। यह भाव इतना गहरा है हमारे अंदर। और मेरे घर में इस समय एक छोटा बच्चा है, तो मैं उसको देखता रहा कि थोड़ा सा बड़ा हुआ और घर में कहीं कांच होता, उसके सामने जाके वो ठिठक जाता था। तो ये कांच का आकर्षण बड़ा ज़बरदस्त है, या दर्पण का आकर्षण बड़ा ज़बरदस्त है। एक दूसरे प्रकार के लोग हैं जो मेकअप करते हैं। किसी के पास एक तस्वीर है, उस तस्वीर से मैच करने की है, या एक कुछ लोग हैं उनके मन में एक छवि है, एक तस्वीर है, और वो अपना जब भी जो ठीक ठाक करना है, ठीक ठाक करते करते अपने मन की उस छवि के साथ उसको मैच करते हैं। हाँ, अब तो मैं कार्तिक आर्यन जैसे दिखने लग गया, अब तो मैं ये हीरोइन के मॉडल की तरह, या जो भी उनका उस समय जो मॉडल है कि नहीं मैं तो भी वक्ता हूँ, वक्ता बन के जा रहा हूँ, तो वैसा युवक या ऐसा व्यक्ति या बड़ा अच्छा लगता था, लगती थी, उसके जैसा मुझे बनना है। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो वैसी प्रकार दर्पण के सामने, आईने के सामने, शीशे के सामने आते हैं और देखते हैं, अरे ये शीशा क्या कह रहा है, ये कुछ कह रहा है। कोई देखता है कि अरे शीशे में मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरह दिखता है, ये शीशे में मैं जैसा हूं वैसा दिख रहा है, इसलिए मैं इसके पास आता हूं। तीसरा दिखता है, अरे अगर देखते देखते गर्मी थी, मैंने पंखा या एसी नहीं चलाया तो मेरे चेहरे पे कुछ पसीने की बूंदें आ गई जो मुझे तो पता ही नहीं था, या मेरे बाल, मेरी त्वचा, मेरे कपड़े ऐसे तैसे थे, मुझे तो नहीं पता, कांच को तो पता है, कांच मुझे बता देता है। तो ये कांच तो गजब है। और ये जो पसीने की बात सोचता है, या जिनकी स्मृति तो होती सबके पास, उसका उपयोग नहीं होता, तो जिसकी स्मृति होती है वो देखता है, मैं सुबह तो ऐसा नहीं दिख रहा था, अभी ऐसा दिख रहा हूं, और मैं तो वही हूं, लेकिन ये बदला हुआ क्यों दिख रहा है। तो वो दर्पण के माध्यम से बदलाव हुआ अनुभव करने लगता है। अरे छोटा था तो ऐसा दिखता था, उस दिन बड़ा अच्छा दिख रही थी, आज इतनी अच्छी नहीं दिख रही हूं, तो ऐसा दिखता है, तो बदल गई। तो बदल जाते हैं, ये कांच तो वहीं का वहीं है, लेकिन मैं बदलता हूं, बदलती हूं, इसमें पता मुझे जब चलता है। तो वो कांच को अब बहुत अलग ढंग से देखता है, और देखता है कि भाई कांच जो कहता है उसके हिसाब से करो, मेकअप ऐसा करो जो खराब नहीं होगा, और मेकअप खराब हो गया तो मान लो कि भाई ठीक है, दुखी होने की बात नहीं है। तो इस प्रकार जीवन में जो बदलाव होते हैं, वो बदलाव को समझने, मानने, उन्हें कबूल कर लेने का एक संदेश उसे दर्पण में से मिलने लगता है। तो ऐसे जो लोग हैं जीवन में, चाहे कोई दर्पण हो, कोई मित्र हो, माता पिता हो, कोई गुरु हो, भाई हो, जो व्यक्ति को कहता है भाई तुम ऐसे हो गए, तुम वैसे हो गए, वो दर्पण ही तो हुए ना। तो जीवन में दर्पण तो कई है हमारे पास, लेकिन कोई दर्पण जब कटाक्ष सीधा कह देता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है, कोई कटाक्ष के रूप में कहते हैं तो हमें कभी मुस्कुराहट आती है, कभी बड़ा द्वेष जागता है उसके प्रति। लेकिन दर्पण तो दर्पण है, वो से जो जैसा कहना वो कहे, हमें क्या करना है। हम पहले प्रकार के व्यक्ति हैं, हम दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं, कि हम तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं, ये तो हमारे हाथ में है ना। और इसके आगे तीसरे प्रकार से भी आगे के लोग हैं,
तीसरे प्रकार के लोग जब ये देखते हैं कि सुबह और शाम के चेहरे में बहुत फर्क हो जाता है, मेरे लुक में मैं कैसा दिखता हूँ उसमें बड़ा फर्क हो जाता है, तो मैं क्या करूँ कि ऐसा फर्क ना हो। कई लोगों की आवश्यकता होती है, माँ होती है, उसे टिके रहना पड़ता है, बहुत लंबे दिन भर टिके रहना पड़ता है, जीवन भर टिके रहना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति होती है। माता हो, पिता हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, तो वो उसकी सहायता से दिखता रहता है, अरे मुझे गुस्सा तो नहीं आया, मुझे दुख तो नहीं हुआ, मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा तो नहीं कह दिया, इत्यादि। वो अपने जीवन में कोई दर्पण ढूंढ लेता है, किसी मित्र को ढूंढ लेता है और उनसे बात करके, उनसे चर्चा करके ये अपने बारे में जानने लगता है। ऐसे लोगों में बड़ी सुख शांति जागती है कि ये जीवन में कोई शक्ति है जो ये परिवर्तन कर देती है। ये बाल सफ़ेद नहीं थे, सफ़ेद हो गए, दाढ़ी मूछ नहीं थे, दाढ़ी मूछ उगाए। एक समय आता है कि गलत जगह दाढ़ी मूछ उगाती है, वगैरह जो भी होता है। तो ये जो शक्ति है, एक अदृश्य शक्ति है जो ये सब बदल रही है, वो एक शक्ति का आभास होता है, बुरी लगती है, लेकिन हम उससे समझौता करना सीख लेते हैं तो हमारे जीवन में एक सुख शांति का मार्ग भी खुलता है, और वो मार्ग बहुत अच्छा है। जीवन में हम सुख शांति को अनुभव कर सकते हैं, उससे हमारा मेल जोल अच्छा रहता है, हम आगे बढ़ते रह सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। लेकिन इसके आगे के भी लोग हैं, और भगवान महावीर का संबंध इसके आगे के लोगों से ही खास है। जीवन में सुख शांति का मार्ग ढूंढ लेना, ऐसे तो कई मार्ग हैं जो किसी भगवान को नहीं मानते, लेकिन अपने जीवन में सुख शांति का जीवन जी लेते हैं। तो भगवान महावीर का जो मार्ग है, आज हम उनकी स्मृति में, भगवान महावीर जैसे जो तीर्थंकर हो गए, उनकी परंपरा के जो आचार्य हो गए, उनकी बात को लेकर आज हम इकट्ठा हुए हैं। तो उनकी बात केवल इतना करने के लिए नहीं है, इससे आगे जाने की बात है, वही उनकी खास बात है। लेकिन और उनकी बात ऐसी है जिसमें सुख शांति तो हो ही जाएगी। जो सुख शांति के और मार्ग हैं उसमें वो नहीं है कि जो भगवान ने बताया है, उस परंपरा ने, या भगवान और उनकी वाकई उनकी परंपरा ने बताया, और उसके उल्टे दूसरे मार्गों में वो बात नहीं है। महावीर कौन है? महावीर तो स्पष्ट ही है कि वो चौथे प्रकार के व्यक्ति थे जिन्हें ये बदलाव तो समझ में आया, लेकिन बदलाव से की जो शक्ति है, उस शक्ति के परे कैसे जाएं, उसी को उन्होंने उत्कृष्ट कहा कि जीवन में अगर कुछ करने जैसा है तो ये जो शक्ति है उससे, उसकी अधीनता से, उसकी परतंत्रता से निकलो। तो ये शक्ति केवल आपको बूढ़ा बना देती है, आपको कभी कभी बीमार बना देती है, कभी आपको सफल कभी असफल बना देती है। ये केवल इतनी नहीं है। ये सब तो तब होता है जब आप जन्म लेते हैं, और जन्म भी तो यही शक्ति देती है। आप में से तो कोई ऐसा नहीं है जिसे याद है कि मैंने ये कि निर्णय किया था कि मैं जन्म लूं और यहाँ जन्म लूं। ये तो आपके हाथ में था ही नहीं। और जन्म तो छोड़िए, मरने की बात भी तो किसने सोची है, पर सबको मरना ही पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि ये जो शक्ति जो हमको जन्म मृत्यु देती है, उसके आगे जाने की बात कैसे हो, और वही करने जैसा है, बाकी करने जैसा नहीं है। इसीलिए हम उन्हें तीर्थंकर कहते हैं कि हमको उस तीर लगा देंगे, उसमें पार लगा देंगे कि वो तीर्थ है, वो पहुंच गए, यहाँ पहुंचने योग्य हैं। तो तीर्थंकर है तो वो सर्वज्ञ है, एक बात। लेकिन उससे ज़्यादा काम की बात तो यह है कि हम में वो जो तीर पहुंच गए, वो तीर
पहुंचाने में या उसका रास्ता बताने में वो सक्षम हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनका रास्ता सही है। लेकिन एक बहुत विचित्र बात है, जैन परंपरा कोई एक परंपरा तो रही नहीं, न जाने कितनी परंपराएं हो गई। उसमें की एक परंपरा का एक महानायक, एक देदीप्यमान व्यक्ति हुआ आचार्य हरिभद्र सूरी, जिन्होंने न जाने कितने ग्रंथों की रचना की वगैरह वगैरह। आज हमारा विषय नहीं है, हम उस महान आचार्य को केवल नमन करते हैं। उन्होंने योग पर ही न जाने कितने ग्रंथ लिखे, 4 ग्रंथ लिखे मेरे ख्याल से। उसमें से एक ग्रंथ योग बिंदु में वो एक बड़ी बात कहते हैं कि ये तीर्थंकर की महिमा गाते गाते भगवान के नाम पर लोग इतने लट्टू हो जाते हैं। अहोभाव, हमारे भगवान के प्रति इतना अहोभाव है। उसे ऐसी भावना देखकर उनके मन में एक प्रश्न जगा, अरे भाई तेरे मन में तो इतना अहोभाव है कि जाने लगता है कि ये भगवान तो तेरे पत्थर को भी पार लगा देंगे। पर वो भी भावुक शक्ति नहीं, पत्थर को पार नहीं लगा सकते, तो जीव को पार लगा सकते हैं। तो जीव को ही क्यों पार लगा सकते हैं? ये वाली बात सबको बहुत अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती? क्योंकि हर कोई जीव को भी पार नहीं लगा सकते। क्षमता है कि हर कोई जीव कभी न कभी पार जा सकता है। अब मैं उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाता, भव्य जीव अभव्य जीव, उससे क्या आना जाना है। वो तीसरे प्रकार चौथे प्रकार का कांच देखने वाला व्यक्ति नहीं है। वो हमें चाहिए, तो ये बात का उन्होंने एक उदाहरण दिया कि भाई ये पत्थर को तो पार नहीं लगा सकते, तो पत्थर को जो पार नहीं लगा सकता जीव को पार, तो जीव की योग्यता क्या है? कि जीव अगर योग्य नहीं है तो वो पार नहीं जा सकता। और योग्य हमारे विवेक का विषय है, हमारी स्वेच्छा का विषय है कि मैं योग्य हूं या अयोग्य हूं। तो हम कभी योग्य होते हैं, कभी अयोग्य होते हैं। तो कभी हम छुट्टी मना लेते हैं किसी चीज़ों से, कभी हम भूल जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो बोले तुम्हारे में अगर योग्यता नहीं है तो तुम उसके पार नहीं जा सकते। तो भगवान ने डेफिनेटली ये जो चौथी बात है कि इस बदलाव से परे जाओ, ये जन्म मृत्यु को देने वाली जो शक्ति है उसकी पकड़ में से बाहर जाओ। लेकिन मैं अगर तुमको उसके बारे में कुछ बता भी दूंगा तो वो तभी तुम्हारे काम आएगा जब तुम उसके लिए योग्यता हासिल करोगे। तुम्हारे में योग्यता होगी, उसे टिकाए रखोगे, उसका ठीक से उपयोग करोगे। एक ही दर्पण को देखकर अलग अलग हमारे में जो भाव होता है, उस दर्पण को देखने की जो हमारी विविधता है हमारे भीतर, उसी का नाम तो दृष्टि है। जब वो सही हो जाती है तो वो सम्यक दृष्टि होती है। सम्यक दृष्टि को हमने इतना रूढ़, टेक्निकल, जैन पारंपरिक शब्द बना दिया है कि ये कॉमन सेंसिकल बात जो मैंने आज कांच के उदाहरण के सामने के दर्पण के उदाहरण के साथ आपके सामने रखने की कोशिश की, उस ढंग से नहीं देखते। दुनिया भर के वैज्ञानिक हैं, उनके जितने प्रयोग होते हैं वो उसी प्रकार से देखते हैं कि पहले पहले इंटरनेट आया तो उसका एक सत्य अनुभव हमारे बीच में आया। आज इंटरनेट से पीछे इंफॉर्मेशन एज आ गई, गूगल आ गई, सर्च आ गया, अब एआई आ गया। अब एआई के साथ एक्सपीरियंस आ जाएगा, रोबो आ जाएगा, एक्सपीरियंशियल ग्लासेस आ जाएंगे, एक्सपीरियंशियल माइंड इम्प्लांट, ब्रेन इम्प्लांट आ जाएंगे। तो बदलते जाएगा। तो वैज्ञानिक तो रुकता नहीं, उसे जो दिखता है वो करता है। तो वो तो हमेशा सम्यक की तरफ जा रहा है, समग्र की तरह जा रहा है, संतुलित की तरह जा रहा है। केवल मैं जानता हूँ ऐसा नहीं, वो सबकी बात जानते जा रहा है। अरे बेचारा लाचार है कि उसको एक साथ सब नहीं दिख रहा, लेकिन उसको देखने का तरीका तो एकदम सही है। वो देखने का ऐसा नहीं कहता है कि आइंस्टाइन ने कह दिया तो सब कुछ हो गया, न्यूटन ने कह दिया तो सब कुछ हो गया, बुल ने कह दिया, हाइजेनबर्ग ने कह दिया, प्लैंक ने कह दिया, जिसने भी फला फला व्यक्ति ने कह दिया, वो नहीं मानता। उसके आगे कैसे जाऊं मैं? तो वो जो भगवान की बात है कि भाई तुम पत्थर नहीं हो,
तुम अपनी योग्यता के अनुसार देखो तो तुम्हें बात समझ में आएगी। ऐसे व्यक्ति को एक बात और समझ में आती है कि जब वो आईने में देख रहा होता है तो अगर प्रकाश बदल जाता है तो आईने में नहीं दिखता, या गुलाबी प्रकाश है तो गुलाबी दिखता है, पीला प्रकाश है तो पीला दिखता है। तो जो दिखता है उस पर प्रकाश का बड़ा प्रभाव है। तो जो हम वस्तु समझते हैं, हमारे पर कौन से ज्ञान का प्रभाव, कौन सी गहरी समझ का प्रभाव है, उससे ही हमें जो है वो विषय समझ में आएगा। तो ये दृष्टि का खेल कितना बड़ा है, जिसको ये बात समझ में आती है वह सम्यक दृष्टि का प्रयास कर रहा है, वह वैज्ञानिकता का प्रयास कर रहा है। महावीर को कोई तकलीफ नहीं है बेचारों को, महावीर के कोई अनुयायी को तकलीफ नहीं है कि भैया तुम अपना प्रयास कर रहे हो। वो तो इतना कहते ही हैं कि भाई ये मार्ग श्रमण का है, ये श्रम करने का मार्ग है। अगर श्रद्धा का ही मार्ग होता, केवल श्रद्धा का मार्ग होता, तो वो तो श्रद्धा मार्ग का श्रद्धाण मार्ग कहा जाता, वो तो श्रमण मार्ग कहा जाता है, क्योंकि श्रम करना है तुमको, और श्रम अपनी योग्यता विवेक के साथ करना है। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति क्या कहे, हमारे बीच में तो कोई गौतम स्वामी जैसा लब्धिवान, प्रतिभावान, बुद्धिवान, मेधावान, स्मृतिवान कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं है। तो उस व्यक्ति के मन में प्रश्न किम तत्तम आता है कि भगवान तत्व क्या है। तो भगवान महावीर की बातें तो बहुत थोड़ी सी में समाई है, बहुत थोड़ी सी चीज़ें में, बहुत थोड़े से वाक्यों में ही कही जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि भाई 9 चीज़ें हैं, 9 तत्व हैं। तत्व के अलग अलग उन्होंने व्याख्या की, लेकिन ये बहुत प्रचलित है और बहुत अच्छी है। इसमें काफ़ी चीज़ें समाविष्ट हो गई कि जीव है और अजीव है, पाप है और पुण्य है, आश्रव है और संवर है, बंध है और निर्जरा है, और 9वां मोक्ष है। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है या अधिकांश चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप जीव हो या अजीव हो, ठीक है भाई, अब जीव बन गए तो जीव हैं, अजीव होते तो पता भी नहीं चलता कि हम अजीव हैं। अब जीव हो गए तो अब जीव की जो उत्तरदायित्व है, जो योग्यता है, जो उसकी प्रतिभा है, जो उसकी संभावना है, उसको जानो तो तुम जीव जैसे, उसको नहीं जानो तो अजीव जैसे। वही पत्थर हो गए, वही हरिभद्र सूरी के पत्थर हो गए कि किसी प्रकाश ने, किसी ज्ञान ने, किसी शक्तिमान ने तुमको यहाँ समझा दिया, यहाँ बिठा दिया, ये करने में लगा दिया था, तुम कर रहे हो, तो तुम अजीब जैसे हो गए। तुम अंदर से जागे ही नहीं, तुमने देखने का तरीका नहीं बताया। किसी ने कहा ऐसा मेकअप कर देना, तुमने ऐसा मेकअप कर लिया, बूढ़े का मेकअप करना, बूढ़े का कर लेना, वगैरह वगैरह। तो हम क्लाउन बने फिरेंगे, एक्टर बने फिरेंगे। तो ये जीव और अजीव का हम टेक्निकल करें कि ये पत्थर अजीब है, दूसरा अजीब है। अरे भाई, उससे ज़्यादा आगे बढ़ो कि योग्यता जाग रही है तो जीव है, और ये योग्यता के बाद भी उसके अंदर उन्होंने बता दी। फिर बोले पाप और पुण्य है। अरे कुछ चीज़ें काम करते हो तुम अपनी इस योग्यता के अनुसार, जिसके अनुसार तुम गलत काम करते हो तो दुखी होते हो। तो जो जो दुख पैदा करे वो पाप, जो सुख पैदा करे वो पुण्य। लेकिन सुख पैदा होते होते अगर तुम्हारी योग्यता नहीं है तो फिर तुम गलत काम कर लोगे, फिर दुखी हो जाओगे। पैसा कमा के दारू पी के तुमने उड़ा दिया, पैसा कमा के गलत व्यापार कर लिया तुमने, उड़ा दिया, तो पुण्य आया, फिर पाप हो जाएगा। और समझदारी है, योग्यता है, तो पाप कर भी, पाप का उदय भी हो गया तो तुम समझदार हो, तो तुम देखोगे भाई मैं ऐसा काम ना करूं जिससे मेरा दुख बढ़े। कितनी सरल सी बात है। ये पाप और पुण्य की बात आगे बढ़ाई कि ये पाप आया कहाँ से, पुण्य आया कहाँ से, ये पुण्य करने का भाव कहाँ से आया, पाप करने का भाव कहाँ से आया। ये प्रसंग जीवन में बदलने लगे। तो ये अंदर जो बदल रहा है, ये बदलते अंदर से कुछ बह के आया,
तो उसको आश्रव कहा। अरे ये तुमने पूर्व जन्म में जो कुछ किया उसका प्रभाव है, और उसका प्रभाव प्रवाह है। एक प्रवाह चल रहा है, ऊपर आता है, तुम्हें होश नहीं रहता और तुम उस प्रवाह को आगे बढ़ाते हो। तो पापानुबंध पाप और पुण्यानुबंध पुण्य वगैरह वगैरह कहते हैं। ये बहुत बड़ी काम की बात है। तो यही हरिभद्र, महान हरिभद्र ने एक दूसरा ग्रंथ लिखा, मेरे ख्याल से बड़ी उम्र में लिखा, जब बहुत ज्ञानी अनुभवी हो गए उसके बाद, कि हमारे जो मुख्य सूत्र हैं नमुत्थोणम, खास करके लोगस इत्यादि पे, उन्होंने बहुत बड़ी व्याख्या लिखी ललित विस्तरा करके। तो नमुत्थोणम में भगवान के गुण हैं कि बुद्धाणम, लोगोत्तमाणम, लोगनहाणम, लोकहियाणम, लोकपैवाणम, लोकपज्जोग्राणम, अभयदयाणम, चक्षुदयाणम, मग्गदयाणम, धम्मदयाणम, धम्मदेशियाणम, धम्मनायगाणम वगैरह वगैरह। तो बोली ये सब देने वाले हैं, धर्म देने वाले हैं, अभय देने वाले हैं। तो उसके आगे चलते बात आती है मुत्ताणम मोयाणम, कि अरे मुक्त हो गए और हमें मुक्त करा देंगे। अरे ये तो बुद्ध हो गए, संबुद्ध हो गए, सर्वज्ञानी हो गए और तुमको भी वो बोधि प्राप्त करा देंगे, वगैरह वगैरह। तो प्रश्न ये है कि जो करा देंगे तुमको, जिनाणम जावयाणम, वो जीत गए, जिन बन गए, तुमको ही करा देंगे, तो वो केवल नमुत्थोणम बोलने से हो जाएगा? नमुत्थोणम में 50 बार सर झुकाने से हो जाएगा? कि लोगस है जो अग्रे कि भाई मुझे तुमने बोधि दे देना, आरोग्य दे देना वगैरह, तो कैसे हो जाएगा? तो इन्होंने इसको तत्व कहा। किम तत्व में, ये तत्व है ये कि संवर करना सीखो। ये जब आश्रव जागा तब तुमको संवर करना है, इस आश्रव को जानना है, और जानकर उस प्रवाह में नहीं बहोगे तो एक योग्यता पैदा होगी। तो मैं जो काम बता रहा हूँ वो काम तुम ठीक से कर सकोगे और आगे बढ़ सकोगे। उसी का एक विस्तार बताया, बंध और निर्जरा, कि ये पाप और पुण्य तो बंध के अनुसार आ गए, और वो बंध में से आश्रव जो था वो आश्रव चलता रहा। तुमने अमुक एक वृत्ति पैदा की। एक छोटा से उदाहरण से देखें आश्रव और संवर को, कि जैसे एक व्यक्ति है, कोई जगह पर बैठा है, वहाँ देखा कोई अपना फ़ोन भूल गया, उसे नया फ़ोन लेना है, स्थिति नहीं है, पैसे नहीं हैं उसके पास। तो मन आया कि देखा अरे कोई नहीं है यहाँ पे, तो ये फ़ोन कब से पड़ा हुआ लावारिस, तो ये फ़ोन उठा लूँ। अब उसके मन में एक प्रवाह जाग रहा है कि फ़ोन मैं उठा सकता हूँ। फिर से नहीं नहीं नहीं, ये तो चोरी हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, ये फ़ोन किसी का होगा बेचारे का, वो कितना परेशान हो जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि मैं फ़ोन उठा के जेब में डालूं और इतने में कोई आ जाए और मेरी तलाशी ले ले। अरे नहीं जाने इस फ़ोन में कोई टेक्नोलॉजी होगी कि मैं पकड़ा जाऊंगा कि ये फ़ोन फला फला जगह है, फला फला व्यक्ति के पास है, फाइंड माई फ़ोन की व्यवस्था रहती है। अब ये उसके मन के कई प्रवाह चल रहे हैं। अब एक प्रकार का संवर है उसने कि नहीं मुझे ऐसा काम नहीं करना है, इसमें पकड़े जाने का डर है। दूसरा प्रवाह चलता है तो वो कहता है नहीं नहीं, ये सोच ही गलत है, जो मेरा नहीं मुझे क्यों उठाना चाहिए। तीसरा है अरे फ़ोन है तो क्या, जिसका है वो जाने, मुझे क्या करना। अब ये संवर की योग्यता है। तो हम कई कहनों को उपवास कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, त्याग कर लेते हैं, तो एक प्रकार से संवर करते हैं उस दिन, पर गिनते रहते हैं कि कितने घंटे हो गए, पारने में कितना घंटा बाकी है, या मुझे इतना दान करना था, उतना मैंने दान कर दिया। न जाने किस प्रकार से हम अपने आप को ठगते हैं। अपने आप को ये मेकअप वाला जो काम है ना, ये पिक्चर जैसा बनना है, मुझे इस पिक्चर जैसा दिखना है, सिनेमा या नाटक के आर्टिस्ट की तरह हम उससे कंपेयर करके अपने देखो ऐसा दिखना चाहिए, मैंने ऐसा कर लिया, 4 उपवास करने चाहिए, मैंने कर लिया, 8 करना चाहिए, मैंने कर लिया।
और वो करने के लिए मेरे को जो प्रवाह है उस प्रवाह को रोकना था उतना मैंने रोक लिया, ये तो मेरा संवर हो गया। और ज्ञानी कहते हैं संवर से ही मोक्ष होता है, ओ तब तो मेरा मोक्ष हो ही जाएगा। नहीं भाई, ये बताया कि जो बंध है जिसमें से आश्रव पैदा होता है, वो बंध जब तक कोई भी बंध होता है तब तक आपकी निर्जरा नहीं होगी। तो आपको ये 4 बातें समझ में आ गई। जीव अजीव तो ठीक है, योग्य हूं तो जीव हूं, अदरवाइज तो अजीव ही हूं। और पाप पुण्य मेरे हाथ की बात नहीं है, मुझे समझ में आती है कि पाप मुझे नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। लेकिन पुण्य के लालच में पुण्य करते रहोगे तो ये बंध जो बताया ना, बंध तो होता ही रहेगा। बंध होता रहेगा तो मुक्त कहाँ से होगे। और भगवान कहते हैं मुक्त होने के सिवाय दूसरा कुछ करने जैसा नहीं है। उसमें सुख, संसारिक सुख भी पैदा होगा, लेकिन वो तो छोटा है, अब नितांत मुक्त हो जाएंगे। तो योग्यता की बात आती है कि बंध कितना जल्दी बंद होता है। भगवान के बोलने से बंध मान लेने की बात नहीं है। यही उस उदाहरण को देखें कि उसके मन में जब बात आती है कि अरे ये मोबाइल ले लूँगा तो ये तो 50,000 का तो होगा, और मैं सेकंड हैंड लूँ तब भी 25-30 हज़ार का तो लगेगा ही, तो मेरे तो बड़े पैसे बच जाएंगे। अब वो जैसे सोचता है उसके अंदर एक मुस्कान जागती है। अरे होने लगा ना प्रभाव उसका, तुरंत रिजल्ट आने लगा, उसकी शरीर की केमिस्ट्री बदल गई। यही गहरी होगी तो ये जन्म नहीं, जन्मों जन्म वही प्रभाव होता रहेगा। कैसा लालच जागेगा, आश्रव जागेगा, और हमें होश भी नहीं रहेगा कि एक बार हमने फ़ोन उठा लिया। ग्राहक का पैसा चोरी करते तो कई लोग रुकते हैं, लेकिन सरकार का पैसा चोरी करने में तो लगता है लोगों ने मान लिया कि ये तो ठीक है यार, ये तो पब्लिक को दिखती ही नहीं है, कोई सरकार तो दिखती ही नहीं है, आपने चोरी कर लो। तो ये बंध को अनुभव से आपको समझना है कि देखो ये बंध हो, ये देखो तुरंत कैसा बंद हो जाता है। फिर थोड़ा समझ में आएगा तो लगेगा, फिर कहीं सोचने लगेगा यही कांच देखना है ना, तो अपना कांच मन तोरा मन दर्पण कहलाए। ये कितने बड़ी बात समझा, आपने लोगों ने सुना ही है, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो कवि ने तो छोटे से में कह दिया, लेकिन मैं तो कुछ विस्तार से कह रहा हूँ। आप लोग जब सोचने लगेंगे तो न जाने कितना विस्तार इसको कर सकेंगे। और बोले कि अगर ये आप आश्रव संवर बंध निर्जरा, मतलब आप जीव से अजीव से जीव जैसे बनने लगे, योग्यता बढ़ने लगी, तो आप ये पाप पुण्य तो किसको, हर किसी को पाप बुरा लगता है, पुण्य अच्छा लगता है, क्या बड़ी बात है। उसके अनुसार ही जीते हैं। यहाँ खराब हो गया तो मेकअप कर लो, ऐसा हो गया तो ऐसे कर लो, और पाप पुण्य के 2 दीवारों के बीच में हम टक्कर खाते रहते हैं। लेकिन उसके आगे की बात जो भगवान ने खास बताई वो हमको आश्रव संवर बंध निर्जरा की बताई कि आखिर में तो ये निर्जरा जब सब बंद की निर्जरा हो जाएगी कि चारों तरफ कोई फ़ोन है, लड़का है, लड़की है, कोई भी प्रलोभन है, कोई भी दुख सुख है, मुझे कुछ नहीं, सब के प्रति मेरे मन में संवर है, तो ये बंध का असर खत्म तो हो गई मेरी निर्जरा। जितना कुछ ये प्रभाव बंधन था वो निर्जर हो गया, काम खत्म हो गया, तो मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष के पीछे भागने की जरूरत नहीं है हमें, तो ये बंध और आश्रव ये सब खेल उसका है, ये समझने की बात है। और ये देखने सीख जाना, ये सम्यक दृष्टि की बात है कि कांच में देखता हूँ, चाहे जो कोई कांच है जिसमें मैं अपने आप को, मेरे व्यवहार को देख सकता हूँ, उसमें देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, क्या चिंतन करने योग्य उसमें से निकलता है। अगर ये निकल रहा है तो मैं महावीर के मार्ग पे चल रहा हूँ। और जीव अजीव जैसा भी हूँ, पत्थर समझता हूँ, अपने आप को किसी के हवाले समझता हूँ कि ये मगधयाणम बोल रहे हैं, धम्मदयाणम बोल रहे हैं, ऐसा है तो मैं पत्थर वाले मार्ग पर हूँ, अजीब हूँ, मेरी योग्यता नहीं तो महावीर मेरे क्या काम के। तो भगवान ने एक तो बता दिया किम तत्तम, और फिर क्या कहा कि भाई ये सब जो व्यवस्था है ये मेरी बताई हुई नहीं है, या मैं बता रहा हूँ ये मेरी बनाई हुई नहीं है, मुझे ऐसा कहना चाहिए, ये मेरी बनाई हुई नहीं है, ये तो प्रकृति की व्यवस्था है।
तो उन्होंने उसको धर्म कहा कि ये प्रकृति ने इसे धारण कर रखा है और ये उत्कृष्ट है, उत्तम ही नहीं श्रेय, ये उत्कृष्ट है। धम्मो मंगल मुख्यटं, ऐसी उनकी पाठ का एक महानायक कहता है। और ये जो व्यवस्था है, जिसे धर्म कहा, कि क्या नियम है, क्या व्यवस्था है, क्यों ऐसा करने से ऐसा होता है इत्यादि। जैसे कानून है ना, कानून को धर्म कहते हैं कि भाई ये मेरा धर्म है, मैं राजा हूँ तो राजा का धर्म है, प्रजा हूँ तो प्रजा का धर्म है, वगैरह वगैरह। तो ये व्यवस्था है, उसके अंदर ये सहज रूप से मेरा जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व का आधार, उसका एक दूसरे से जुड़ाव, इससे लेना देना है, इसलिए ये धर्म है। और कितना श्रेष्ठ कह दिया उन्होंने, उसका सार कह दिया। धम्मो मंगल मुख्यटं अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयमो तवो। क्या अहिंसा संयमो तवो? अहिंसा को हमने एक बड़ा, कई बार मुझे ऐसा लगता है, ऐसा भाव शायद नहीं होता होगा या कहीं बहुत छुपा हुआ होता भी होगा। अरे मैं औरों पे करुणा करता हूँ, अरे उस और जीव को नहीं मारो, उस जीव को बचा लो। तो हमने भौतिक अहिंसा को बहुत बड़ा बना दिया। तो आज उसका विषय नहीं, इसलिए मैं छोटे में ही कहूँगा। बात केवल इतनी सी है भाई, कि जैसे तुम जीव हो वैसे संसार में बहुत जीव हैं, और उनके प्रति जरा सोचो तो सही कि मैं उनके प्रति, मेरे मन में कैसा भाव है, कैसा मेरा व्यवहार है, कैसा बर्ताव है। उस बर्ताव को क्या मैं सुधार सकता हूँ? बस ये भाव जागते ही वो पीछे नहीं देखता है कि ये कोई गाय है या और कोई प्राणी है, वो प्राणी मात्र में दिखता है। तो कई हमारे अहिंसक चैंपियन ऐसे हैं कि जो पांजरा पोल की गाय के प्रति तो उनके मन में बड़ी करुणा है, लेकिन घर में बैठे व्यक्ति के प्रति नहीं, उनका दुख सुख उनको नहीं दिखता। तो हमारी अहिंसा अधूरी रह गई। तो अहिंसा में जब अहिंसा संयमो तवो कहा, तो उसमें यह है कि संसार में मेरे अलावा जितने भी प्राणी हैं, उनके प्रति एक संवेदना मेरे मन में है, और वो संवेदना मुझे कहती है कि भाई इनका कोई हानि नहीं हो, इन्हें कोई दुख नहीं हो। एक तो उनका दुख मिटा दूं, मैं पैसावान हूँ, समर्थ हूँ, तो ये कोई पिंजरे में उसमें से निकाल दो, कोई किसी का वध होने वाला उसको से उसको निकाल दो, कहीं ऐसी व्यवस्था कर दो कि ऐसी काम कैसा काम ही नहीं हो। वो एक बात बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो हमारी सूक्ष्म योग्यता वाली बात आई ना, कि भाई हम जीव अजीव से जीव वाकई कैसे बनते जाएंगे, हमारा संवर कैसे बढ़ते जाएगा, हमारी ये जो निर्जरा वाली बात हमें कैसे समझ में आएगी। तो ये बात तो बहुत गहराई से होगी, तब अहिंसा गहराई से हो जाएगी, और कोई परिस्थिति से, कोई वर्ग विशेष से बढ़कर एक प्राणी मात्र के लिए, जीवन भर के लिए हमारे मन में बात आएगी। तो जब ऐसी बात आएगी तो दूसरी बात आएगी, ये संयम वाली या संयम वाली, अपने आप पर एक रेस्ट्रेंट करना। तो रेस्ट्रेंट वापस वैसे ही बात है कि मोबाइल चोरी करना है तो अपने आप को रेस्ट्रेंट कर लिया, लेकिन रेस्ट्रेंट किया तो कानून के डर से किया, पकड़े जाने के डर से किया, या किसी पे करुणा आई कि भाई वो किसी का होगा, उसको मेरे से बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो इसको छोड़ देते हैं, पता नहीं यहाँ बैठा था वो कोई, उसके भी कपड़े मेरे जैसे ही थे, वो बेचारा भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, न जाने क्या तमाम मेरे मन के अंदर ये आश्रव चलते रहते हैं। तो मुझे मेरे आप में आप पे संयम लाना है। तो हर काम में दूसरों को बीच में ना रखकर खुद के अंदर आश्रव जागते हैं, वो आश्रव के प्रति मैं संवर करना सीख गया, सजग होना सीख गया। तो संवर ही महान संयम है। तो वो आदमी जब ऐसा, जो व्यक्ति, जो साधिका, जो साधक ऐसा सोचने लगता है, तो वो संयम को समझने लगता है। ये नेगेटिव संयम नहीं है,
दीक्षा लेना बहुत महान संयम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीक्षा लेके भी कई लोग हैं कहीं संयम के अंदर चूक जाते हैं। दीक्षा नहीं लेके भी कठिन परिस्थितियों में भी बड़ा संयम रखते हैं। तो इस संयम को वो समझने लगते हैं और बड़ी व्यवस्था के साथ समझते हैं। ओ ये प्रकृति है, प्रकृति में कोई योग्यता वाले लोग हैं, कोई अयोग्यता वाले लोग हैं। जो योग्यता वाले लोग हैं वो वाकई अपनी परिस्थिति देख के, मैं कांच की बात लंबी नहीं चलाता, लेकिन इतना आसान है, हमारे को चारों तरफ से फीडबैक मिलता है। उस फीडबैक को यूज़ करते करते अपने अंदर ही फीडबैक आश्रम को जब हम देखने लगते हैं, मेरे मन में क्या भाव जाग रहा है, मेरे मन में क्या भाव जाग रहा है, अरे मुझे कांच देखने की क्या ज़रूरत है, किसी को पूछने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए भगवान कहते हैं अरे तुम ही तो तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र हो, तुमको और मित्र की क्या ज़रूरत है, कोई बाहर के कांच की ज़रूरत नहीं है। कितनी बढ़िया प्रेरणा की बात उन्होंने हमसे कही है। तो ये अहिंसा और संयम की बात हुई और तप की बात आई। अहिंसा संयमो तो वो तप करना है। अरे ये जो मन की मशक्कत है, कश्मकश है, ये बड़ा तप है। बाहर से तो मुस्कुराहट रखना बड़ा अच्छा है, ये आसान है रिलेटिवली। अंदर भी हमारा मन मुस्कुराए, दुख आए सुख आए सब में मुस्कुराए, वो तो तप करना बहुत कठिन है। तो हमें वो तप करना है। हो सकता है कि अंदर का तप करने के पहले हमें बाहर का तप करना पड़े, लेकिन बाहर का तप का लक्ष्य तो यही है कि अगर वो संवर करना है वाकई, तो वो मोबाइल चोरी करने का संवर नहीं है, वो आश्रम, वो भाव ही नहीं जगे, हमें वो संवर तक पहुंचना है। तो वो तप हमें करना है। तो उसके लिए भी भगवान ने बहुत आसान तरीके से एक आखिरी बात बता दी कि भाई 6 प्रकार के बाहर के तप हैं और 6 प्रकार के अंदर के तप हैं। उसका क्रम बता दिया कि बाहर के तप हैं किस तरह, उनकी श्रेणी, उनकी कक्षा, उनका स्टैंडर्ड, उनका लेवल, स्टेजेस बढ़ते जाते हैं। तो बहुत आसान तरीके से उसे देख ले कि पहला बता दिया अनशन, कि नहीं खाना, आहार नहीं लेना है। तो कितना टाइम नहीं लेना, अच्छा भाई अभी 48 मिनट नहीं लेना तो नौकार्षी हो गई। नहीं खाना, खाना ही नहीं, कुछ सवाल ही नहीं उठता, नहीं खाया मैंने। तो नवकार्षी से लेके उपवास तक आ गए, कोई 2 उपवास पे आ गया, 3 पर खाना ही नहीं मुझे। वो बोले अच्छी बात है, ये तो आपने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि इस समय कर्फ्यू है, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो आप क्या काम से जा रहे हो, कौन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब क्या आहार है वगैरह वगैरह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद में बताया कि आपने विषय त्याग करना सीख लिया, कि अभी आपको अमुक चीज़ें नहीं खानी है। ये उसके आगे उन्होंने बता दिया कि अभी मेरा पेट खाली रखना मुझे। अब आगे सामने समोसा आ गया, मिठाई आ गई, कोई अच्छा नया, तो रोज़ नई चॉकलेट, नई आइसक्रीम में जाने क्या क्या निकलते हैं वो आ गए, कुछ भी आ गया। अब मेरा पेट तो मुझे खाली ही रखना है। तो ये खाली पेट को जानने के लिए कर्फ्यू लगाना आसान है, लेकिन अब यहाँ से आगे किसी को भी नहीं जाने देना है, या पेट खाली रखना है। अब सीटें 10 खाली रखनी थी, अब कोई भी आ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कंट्रोल करना, बड़ा लालच जागेगा कि 10 नालायक जो बाहर आएगा बैठेगा, 10 नालायक अंदर बैठे हैं, उनको बाहर निकालो, ये तो ज्ञानी आ गए, ये तो बड़े सेलिब्रिटी आ गए। बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जागेगा कि भाई मेरे अंदर क्या है, पेट इतना भर गया, पेट खाली है, इसे जानना आसान है। पेट इतना भर गया और इतना खाली है, इसे जानना बहुत, उससे पहले कक्षा के ये कक्षा बड़ी कठिन है। इसलिए इसको उपवास करने से बड़ा तप पुनोदरी को इसलिए बताया कि इसमें अंदर और बाहर दोनों जुड़े हुए हैं। पहले में तो बंद है, ठीक है बंद हो गया, दूसरे में तो बंद भी है खुला भी है, और दोनों को जानना है। वैसे वृत्ति संक्षेप है कि भाई अभी मैंने वे वृत्तियाँ ही कम कर दी, मन में जागता ही नहीं है। और तो पहले तो मैंने अंकुश किया, अब धीरे धीरे वो हो गया, उसमें से रस त्याग आ गया। अरे कुछ खाता भी हो तो मुंह में रस नहीं आता। तो ये काया का जो क्लेश है, ये काया में इतनी इच्छाएं जागती वगैरह वगैरह, काया क्लेश है। और वही बढ़ के संलीनता है कि मैं जब सब मेरा आखिरी समय आएगा तो मुझे इस काया के प्रति का कोई मोह ही नहीं रहेगा, ऐसे ही छूट जाएगी। ज़बरदस्ती करने से संसारा नहीं होता। जब सहज होता है,
तो वो असली संथारा होता है। ऐसे ये बाहर के तप बता दिए, अब वैसे ही अंदर के तप बता दिए कि भाई प्रायश्चित है, विनय है, व्यावच है, स्वाध्याय है, साध्यान है और कायोत्सर्ग है। तो ये जो आखिर के अंदर संलीन सपना संथारा की बात आई और आखिर में कायोत्सर्ग की बात आई, तो किस प्रकार अंदर बाहर जुड़ेंगे तो दोनों सहज हो जाएंगे। तो वैसे ही ये मेरी चित्त की जो स्थिति है, जिस तरह अनशन एक हैंड ब्रेक है एक प्रकार का, वैसे ही प्रायश्चित उससे उल्टा है कि अरे भाई कुछ तो अपने चित्त के ऊपर कंट्रोल लाओ, कुछ तो उसको देखना सीखो, प्राय प्राय तो उसे ठीक करो। और वो प्राय प्राय ठीक करने के लिए पुरानी बातें नहीं भूलती, कोई राग नहीं भूलता, कोई द्वेष नहीं भूलता, कोई अफसोस नहीं भूलता, तो उसका कोई तरीका कर लो। नहीं तो केवल जब भी कुछ कोशिश करोगे वही ऊपर जागेगा, तो उसमें से निकल जाओ। तो उसको प्रायश्चित बता दिया। ये स्टेशन समझना जानना इतना अनिवार्य है, क्योंकि मन की स्थिति क्या है अगर हम नहीं जानते और दूसरा कुछ करते रहेंगे, ये लेक्चर सुन रहे हैं, कहीं चले गए, मंदिर में चले गए या आचार्य के पास चले गए, लेकिन मन तो बार बार किसी वस्तु में लगा है, तो ये मन की स्थिति नहीं जानते। तो वही हम मैकेनिकल कांच में देख रहे हैं, मैकेनिकल काम कर रहे हैं। हाँ, ऊपर से कोई कहेगा, हमको समझ में आता है कई बार कि देखो ये हमारे से बात कर रहा है लेकिन इसका मन कहीं और है। तो ये प्रायश्चित जो समझ में आता है लोगों को, वही देखते हैं 1 घंटा भी कुछ नहीं होगा तो अपने मन पे एक संयम कर लेते हैं। तो वो अनशन वाला जो काम है वो प्रायश्चित में भी कर लेते हैं। तो आज समय नहीं है, तो आप एक मोटी रूपरेखा सम्यक दृष्टि की है कि बातें वही रहती है, अब हम उनको देखते कैसे हैं। ये जो देखने का क्रम है और ये आखिरी वाला जो क्रम है, वही भगवान से के उनके देशना का, उनकी तपस्या का, उसका जो फल है उसी से लेना देना है। प्रायश्चित वैसे ही विनय है, वैसे ही व्यावच है। अब व्यावच को मैं टेक्निकल बता दूं कि नहीं भाई, कोई जैन भाई है तो व्यावच है, या कोई साधु है वो भी मेरे संघाड़े का, कहाँ कहाँ तक लोग चले जाते हैं। अरे भाई, दूसरे का दुख देख के तुम्हारे मन में एक करुणा जागती है, एक सेवा का भाव जागता है, तो तुमने भलाई किसी का भी कर लिया। तुम्हारे मन की जो कक्षा है, उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होने लगी। नहीं तो अंदर का तप है ना, अब अंदर का तप है कि इसमें निर्मलता आने लगी, अब उसमें कंटाला नहीं आने लगा, तो ये बात बढ़ने लगी। तो व्यावच की बात है, वैसे ही स्वाध्याय की बात है। अब स्वाध्याय को मैं किताब पढ़ूं तो अच्छी बात है, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, किसी विषय के बारे में सोचता हूँ, लेकिन अपने आप को नहीं देखता हूँ तो प्रायश्चित से ही आगे नहीं बढ़ा मैं। तो स्वयं का अध्ययन करते रहना कि फिर मुझे बाहर का कोई आलम्बन की जरूरत ही नहीं है, तब मैं ध्यान में पहुंचता हूं। तो ये दुर्भाग्य है कि हमारे ध्यान की परंपरा और उससे आगे की जो कायोत्सर्ग की परंपरा थी वो एकदम मैकेनिकल हो गए। ध्यान की परंपरा तो चली गई, आज ध्यान की कई परंपराएं जागी है वापस। विपश्यना के जागने के बाद में विशेष रूप से जागी है। तो न जाने जैन विपश्यना, न कितने जात की विपश्यना आजकल निकलने लगी है। ठीक है भाई, विपश्यना का अर्थ तो केवल सम्यक दृष्टि ही होता है। पश्यना अर्थात देखना, विपश्यना अर्थात विशेष रूप से देखना, जैसे सम्यक रूप से देखना, समग्र रूप से देखना, जो यथार्थ है उसे वैसे ही देखना। यथार्थ का दृष्टि ही विपश्यना है, यथार्थ का दृष्टि देखना वही, यथार्थ को देखना वही सम्यक दृष्टि है। तो विपश्यना का ध्यान तो बहुत छोटी बात है, ये वाले जो सत्य को कैसे देखना, उसके लिए क्या योग्यता पैदा करना। तो एक वही यशोविजय उपाध्याय ने एक महान, मैं उनकी क्या बात कहूँ, उन्होंने कह दिया स्थिरताम दर्शयिष्यति। अरे पहले स्टडी होना सीखो, स्टडी हो गए तो तुमको तो अपने आप दिख जाएगा। तो ऐसी तो योग्यता की बात उन्होंने हमें कर दी। तो मैं अभी सारांश करूँ उसका कि हमें हमारे बारे में कई तरह से फीडबैक आते हैं, उस फीडबैक को हम कैसे उपयोग में लाएं, और जो ऊपर ऊपर दिख रहा है
उसके प्रति प्रतिक्रिया करने के बदले में मैं उसकी अंडरलाइंग जो प्रोसेस है, रियलिटी है, उसे देखना सीखूं। वह सम्यक दृष्टि का मार्ग है, जो सत्य को देखने का मार्ग है, तत्व को देखने का मार्ग है। तो भगवान ने तो ये हमको तत्व भी बता दिए और तत्व की चर्चा बहुत सरल भाषा में आप लोगों के साथ मैंने करने की कोशिश की। और ये जो आखिरी तप की बात कही, वो तप अगर हम अनशन को लेकर ही समझेंगे, नाना प्रकार के अनशन करेंगे, या वृत्ति संक्षेप के अंदर भी हम ये जो अंदर के तप के साथ उसे नहीं जोड़ेंगे, ये हमारे आश्रव को जानने की बात को नहीं समझेंगे, और उस पर संवर कैसे आया जा रहा है, कैसे वो सहज होते जा रहा है, वो बात नहीं हमारे लक्ष्य में आएगी। हमारी सम्यक दृष्टि की यात्रा इतनी अच्छे से नहीं होगी। तप का एक बहुत बड़ा दूसरा कारण है। तप क्या है? लगातार सजग रहना है। बाहर के तप करने का बड़ा उपयोग है, क्योंकि हमारे पास ये तो एक कर्म की शक्ति, मैंने शक्ति का नामकरण नहीं किया, लेकिन वो कर्म की शक्ति, वो कर्म का हम करते हैं उसी का प्रभाव है। वैसे ही प्रकृति के अंदर रही हुई एक व्यवस्था है, अंधकार की व्यवस्था, हमें डुबाए रखने की व्यवस्था, उसका नाम है प्रमाद। तप उसका फाइट बैक है, कि जो लगातार तप करता है, वर्षी तप करता है, वर्षी तप तो क्या जीवन भर तप करना है कि प्रमाद में कहीं हम ना रह जाएं, प्रमत्त ना बने। उसे देखने लगता है, जो सम्यक दृष्टि बनने लगता है, वो देखता है कि अरे कितनी जल्दी मुझ में आलस आता है, कितनी जल्दी मैं बात बदल देता हूँ, बहाना कर लेता हूँ। तो मेरे मन के अंदर एक प्रमाद है जो मुझे जो करना है उससे विमुख करता है, उससे रोकता है, उसके ऊपर एक आवरण लगा दे। अरे छोड़ो यार, कल भी तो कई, मुझे याद है कि एक मेरा जूनियर था, उसको कभी भी काम कहता था तो वो कहता, ए टुमारो इज़ अनदर डे बॉस, कल है ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। बहुत बड़ी पकड़ है। तो अब भगवान ने तो बहुत थोड़े से शब्दों में हमको सब बातें कह ली, हमने उसकी परंपरा बना दी। अब परंपरा में न जाने कितना विस्तार कर दिया, उसमें हमने तीर्थ बना लिए, मंदिर बना लिए, स्थानक बना लिए, उसके न जाने कितने नियम हो गए, उन नियमों के अपवाद हो गए, उन नियमों की चर्चा हो गई। हम कहाँ से, अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर सम्यक दृष्टि है तो हम उसको सही रूप से देखेंगे। कांच में कोई बुराई नहीं, कांच तो महागुरु है, ये सब हमारे बड़े भले करने के लिए है, लेकिन हमें उन्हें देखना नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, हम फंसे के फंसे रहेंगे। तो आज ये पर्यूषण का अवसर है, पर्यवेक्षण का अवसर है, हमारा हित चाहने का अवसर है। 8 दिन पूरा करने का नहीं है, 8 दिन से क्या लेना देना, जब मानो तब पर्यूषण है। पैसा तो आप रोज कमाते हो, कोई पैसा कमाने का दिन नहीं होता, सरकार बंद कर देती है इसलिए छुट्टी करनी पड़ती है। तो वैसे ही अपना हित कमाना है, अपना हित कमाने के लिए कहाँ छुट्टी की ज़रूरत है, कहाँ स्पेशल दिन की ज़रूरत है। हम थोड़ा ना इतने बेवकूफ़ है कि मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, अरे केवल वही दिन है क्या? ये तो प्रवाह है, ये तो जीवन भर के लिए है। हम कैसे इनसे उपकार में से, इनके हित में से, इनके गुणों में से निकल सकते हैं। तो वैसे ही भगवान की वाणी का गुण तो 24 घंटे हमारे जीवन में कैसे बसे उसके लिए है। वही उनकी तप की संभावना है, उसका सबसे बड़ा लाभ उठाना है। वही हमें इस योग्यता को सर्वश्रेष्ठ बनाने का ये जो भाव मिला है उसका उपयोग है। और वो तब तक नहीं होगा जब हम एक मैगज़ीन की तस्वीर देखकर अपना मेकअप करेंगे। जब ये हट जाएगी, जब हमारा विवेक जाग जाएगा, हमको ही अपने आप दिखने लगेगा, तब हम वाई सच्चे मायने में भगवान के अनुयायी बनेंगे। सच्चे मायने में हम पर्यूषण को समझेंगे। सच्चे मायने में सम्यक दृष्टि, सत्य को देखकर जितनी चीज़ें संसार में हैं, हमारे भीतर बाहर, उनका वाकई सत्य क्या है। भगवान ने एक हमें ढांचा दे दिया, इस किम तत्तम का ढांचा, नौ तत्व का ढांचा दे दिया। हमें क्या करना उस तप का ढांचा दे दिया। तप की महिमा बता दी कि भैया नहीं तो प्रमाद में फंस जाओगे। और कहीं पे उन्होंने कह भी दिया
कि समयम गोयम मा पमा, ये प्रमाद मत करना मत। अब हम उसको गोख लें और उसकी चर्चा कर लें कि उत्तरायण ध्यान सूत्र में ये अध्याय के अंदर भगवान ने ये शब्द इतनी बार कहे, क्या मिल जाएगा? वो हमारे जीवन में उतरे, हमारी दृष्टि बदले तो जीवन में उतरे। जितने श्रोता हैं सब अपने इस जीवन का श्रेष्ठ लाभ उठाएं, इस दृष्टि की महिमा को समझें, इस दृष्टि को सही करें और उस दृष्टि में स्थिर होते जाएं, तो सब खेल अपने आप बदलने लगता है, अपने आप जैसे संवर होने लगता है। हम निर्जरा की तरफ जाने लगते हैं, सब बंधनों से मुक्त होने की शक्ति हमारे अंदर सहज रूप से आ जाती है। बाहर का जीवन भी आनंदमय, अंदर का जीवन भी आनंदमय, सबका जीवन ऐसा सुखमय, आनंदमय, मुक्तिमय बने। ऐसी ही मेरी मंगल प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। वल्लभ भाई वंशाली का व्याख्यान अभी हमने सुना। व्याख्यान के आरंभ में जय जिनेन्द्र और जय सत्येंद्र, ये जो आरंभ था वो ही हमें एक प्रकार से सम्यक दृष्टि की और जैसे कि आई ओपनर हो उस दिशा में ले गया। बहुत ही बखूबी से उन्होंने सम्यक दृष्टि के एक एक स्टेप को अपने हमारे सामने रखा और उसका विकास किस तरह से करते जाए उसकी बात की। आरंभ में उन्होंने बहुत अच्छी तरह कहा हमें कि 4 प्रकार के मनुष्य है और जो आईने में देखते हैं, जो आईने में देखने की बात है तो हम रोज आज भी हम यहाँ बैठे हैं और जिसने कैमरा स्टार्ट किया है उन सबको एक बार होता है कि हम आईने में देख ले। तो ये किस प्रकार के दर्पण और प्रतिबिंब की जो बात हुई है, और उस दर्पण और प्रतिबिंब की बात करते करते हम हमारी परंपरा में अगर चले भी जाते हैं तो उस परंपरा में चलते चलते हमें अपने आत्मिक विकास को नहीं भूलना है। हमें एक सिर्फ જેને કહીએ ને ટોળાનો ભાગ નથી બની જવાનું, એ દિશામાં પણ ધ્યાન રાખવાનું છે। તો એની વાત બહુ સરસ રીતે એમને મૂકી આપી છે। उन्होंने पहले बताया हमें कि एक व्यक्ति एवो છે जो अपने आप को देखता है और अपने आप का मेकअप वगैरह सब कुछ ठीक है देख लेता है। दूसरा जो व्यक्ति है वो उसके सामने एक छवि है और वो छवि में उस जो चेहरा दिख रहा है, जो उसका आदर्श है, उसके जैसा बनने का प्रयत्न करता है। तो ये दूसरा दर्पण है। तो हमें जो दिखता है उसमें हम बहुत खुश हो जाते हैं कि आज हम बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। दूसरा चेहरा जिसके जैसा हम बनने की कोशिश करते हैं और उसके जैसे बनते बनते हम अपने आप को सफल मानने लगते हैं। कितनी सटीक बात है। सम्यक दृष्टि का अगर विकास करना है तो ये दोनों प्रकार की दृष्टि को तो छोड़ना ही है, क्योंकि जो हमें हमारे आसपास से जो मिली हुई है, जो बहुत प्रचलित है, उस दिशा में अगर जाएंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। और वो कहते हैं यहाँ पर एक अच्छी सी बात कि तीर्थंकरनी महिमा गाते गाते हम अहोभाव से उसके प्रति जुड़ जाते हैं। बट उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जो महिमा गाते हैं वो पत्थर को पार नहीं लगाते हैं, वो जीव को पार लगाते हैं। आपके जीव को, हमारे अपने जीव को वो योग्यता लानी है और वो योग्यता के प्रति जाने के लिए हमें विवेक हमारे में वो होना चाहिए। वो पसंदगीनो जो विवेक है नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पसंदगी का विवेक होना चाहिए। हमें क्या दिखता है, हमारी परंपरा ने हमें क्या दिया है, हम उसमें किस तरह से आगे जाए। ये तो हमारे पास हेरिटेज है, बट उसमें आज के इस समय में, आज 2 सितंबर को हम किस तरह उसमें आगे जाए वो देखना है। और यहाँ जब वो देखने की बात आती है तो वहीं से वल्लभ भाई कहते हैं कि एक प्रश्न होता है कि भगवान सत्य कहाँ पर है। तो ये जो सत्य की फिर बात करते हैं और वो तीसरी छवि की ओर हमें ले जाते हैं कि तीसरा प्रकार का जो इंसान है, 2 प्रकार के तो बता दिए, फिर वो बताते हैं तीसरा प्रकार का एक इंसान है। वो आईने में देखता है और वो क्या देखता है कि ये मेरा जैसा लेफ्ट हैंड है वैसा ही राइट हैंड दिख रहा है। अगर उसकी याददाश्त अच्छी है तो वल्लभ भाई कहते हैं कि वो सोचेगा कि 1 साल पहले मैं ऐसा दिख रहा था या मैं ऐसी दिख रही थी, अभी 1 साल के बाद मैं ऐसी दिख रही हूँ। तो धीरे से वो कहते हैं फिर वहाँ पर कि ये जो हमें बताते हैं ना, वो हमारे तीसरा दर्पण मतलब हमारे माता पिता स्वजन, वो भी तो वही करते हैं ना कि पहला तू आवो હતો, હવે तू आवो થઈ गयो। ये तीसरे प्रकार के इंसान थोड़ा जागरूक होकर देखते हैं कि किस तरह से वो बदल रहे हैं, धीरे धीरे वो बदल रहे हैं और किस तरह से बदल रहे हैं।
और वो जब बदलते हैं साथ में उनके पास एक आता है स्वीकार भाव। वो उसका स्वीकार भी करते हैं कि हाँ पहले ऐसा था, आज ऐसा है, और वो सुख शांति का मार्ग ढूंढता है। ये सुख शांति के मार्ग के लिए अभी और एक प्रकार के इंसान है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो उसकी मात्रा और उसकी संख्या बहुत कम होती है, किंतु वो सोचते हैं कि वो जो भाव से कह रहे थे, किंतु वो भाव सिर्फ पार नहीं उतारेगा, उसके लिए आपके जीव को अंदर से तैयार होना है। तो वो तैयार होने की योग्यता प्राप्त मेरे में है कि नहीं, वो चौथे प्रकार का इंसान है। वो आईने में देखता है कि मेरा जो जीव है, मेरा जो आत्मा है, वो आत्मा क्या उस प्रकार तैयार हुआ है, क्या मुझे वो पात्रता मेरे में है, और अगर पात्रता वो नहीं है तो मुझे उसको खोजना है, मुझे उस सत्य को खोजना है, मुझे उस सम्यक दृष्टि को समझना है। और ये बात करते करते उन्होंने हरिभद्र सूरी के योग बिंदु ग्रंथ का भी उल्लेख किया, और उसमें भी जो बात आई है उसके भी थोड़े हमें उस बारे में समझाया। आगे बताते हैं कि जन्म और मरण वो एक शक्ति है, वो हमारे ऊपर की शक्ति है, किंतु हमारे पास ऐसा एक दर्पण है, वो ये जन्म और मरण जो हमारे हाथ में नहीं है, किंतु उस बीच का जो समय है, उस समय में हम उसको देखना समझ ले, उसको देखना समझ ले कि किस तरह से उसको देखना है, वो समझ ले। और वो सम्यक दृष्टि जो संतुलित दृष्टि है, जो समग्र लक्ष्य दृष्टि है, और वो आईने में देखकर कहती है कि मैं अपने आप को योग्य बनाऊं, मैं जहाँ लास्ट पर्यूषण में था उससे आगे इस पर्यूषण में आया सका कि नहीं आ सका हो। प्रकाश उस समय अगर आईने में वो देख रहा है और उसको और एक प्रकाश भी दिख रहा है, शायद वो येलो हो, शायद वो पिंक हो, तो वल्लभ भाई कहते हैं कि वो जो प्रकाश है वो ज्ञान का प्रकाश है। तो एक तरफ से वो आईना में अपनी कुतूहलता, अपना प्रयत्न करता है, दूसरी ओर से ज्ञान का प्रकाश भी है। तो सिर्फ ये श्रद्धा का मार्ग भी नहीं है, और ना सिर्फ ये परिश्रम का मार्ग है, ये ऐसा मार्ग है जिसमें हमें दोनों की आवश्यकता है। आज हमारे पास गौतम प्रभु जैसी कुतूहलता तो नहीं है, किंतु हमारे पास अपने कुछ ग्रंथ है, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरु भगवंतों ने, हमारे स्कॉलर्स ने जो रचे हुए ग्रंथ है, उसको हम समझे, उसको हम देखें, उसको हम पढ़े, और उसके लिए उन्होंने रास्ते बताए कि अपने 9 तत्व को समझ लो। 9 तत्व के अंतर्गत आप अब जीव, अजीव, पाप, पुण्य, संवर, आश्रव, बंध, निर्जरा, ये सबको समझ लो, तो आपको जो 9वां तत्व मोक्ष की ओर किस तरह जाना है वो समझ में आएगा। तो उसकी भी बात करते हुए उन्होंने किस तरह से हमें जीव और अजीव का भेद समझना है, किस तरह पाप और पुण्य का भेद समझना है, संवर और आश्रव की प्रक्रिया किस तरह से करनी है, और निर्जरा में किस तरह से गूंथ जाना है, वो भी उन्होंने समझाया है। और फिर वो कहते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं, तो जब हम सिर्फ नमोत्थान बोलते हैं तो वहाँ मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, किंतु हमें उसके अर्थ के साथ वो समझकर वो योग्यता प्राप्त करनी है। जो आ रहा है उसको रोकना है, और साथ में निर्जरा भी करनी है। तब तो कर लिया, दान कर लिया, बट वो सारे मेकअप है, उस मेकअप के आगे जाना है, उसको तो करना ही है, तब भी करना है, बट उसके आगे अगर मैंने लास्ट ईयर इतना कर लिया है तो इस साल उससे आगे और एक स्टेप जाना है, और तभी हम अपनी यात्रा में भी और एक स्टेप आगे जाएंगे। और ये बात उन्होंने बताई हुई है। आश्रव और संवर की बात बहुत ही विस्तार पूर्ण बताते हुए वो कहते हैं कि जो कुछ नए कर्म बन रहे हैं उसको भी तो रोकना है, और जो आ रहे हैं उसको एक दृष्टिकोण से देखकर उसको जो होना है, जो हो रहा है, उसको होने देना है। स्वीकार भाव भी साथ में उसके साथ चलना चाहिए। तो प्रकृति की एक व्यवस्था है, और ये प्रकृति की व्यवस्था वही धर्म है, और उसको हमारे हाथ में नहीं है, वो तो होना ही है, वो हमारे कर्म के रूप में हमें आंसर देने ही वाली है। बट उस समय हम नए कर्म के प्रति ना चले जाए, वो जो दृष्टि लगातार हम में रहे, वो जागृति हम में रहे, और वो ही हमारी सम्यक दृष्टि का विकास है। ऐसी बात करते हैं। फिर आगे वल्लभ भाई ने तप की भी बात की है, बाह्य तप और अभ्यंतर तप दोनों की बात की है। 12 प्रकार के तप हमें समझाए हैं कि वृत्ति संक्षेप का भी कितना महत्व है, और धीरे धीरे स्वाध्याय तक पहुंचना का कितना महत्व है। और वो जब स्वाध्याय तक भी पहुंचते हैं, वो एक प्रायश्चित होता है, अपने आप में एक कायोत्सर्ग होता है, और वो होते होते हम उसमें चले जाते हैं। वो एक साहजिक प्रक्रिया हमारे में बननी चाहिए। धीरे धीरे हर साल हमारा प्रत्येक स्टेप ऐसा होना चाहिए कि ये सारी क्रिया साहजिक रूप से हमारे में आनी चाहिए। और
उस समय वल्लभ भाई कहते हैं कि जो अंतिम एक ऐसा भी स्टेप होता है कि जहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ जीवदया या अहिंसा क्या है, सिर्फ हमें बाहर के इस प्राणी को बचा, हमारे पूरे आसपास जितने भी लोग हैं उसको हम कहीं कोई दुख नहीं पहुंचा रहे हैं ना, उसको हम कहीं कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना, तो ये समझना है। और जब कोई घटना बनती है तो हमें उसका फीडबैक मिलता है, तो उसके प्रति तुरंत प्रतिभाव नहीं देना है कि रिएक्शन नहीं देना है, बट उससे पहले उस प्रोसेस को समझे। वो फीडबैक में जो आई हुई है या हमारे साथ जो हुई हुई है उसकी प्रोसेस को समझे और लगातार जागरूक रहे। जागरूक रहते रहते अपने आप को हमेशा ये याद दिलाए कि कहीं हम प्रमादी ना बन जाए, हमारे में प्रमाद ना आ जाए। और ये प्रमाद जब दूर हो जाता है तब सम्यक दृष्टि का विकास होता है। आज के इस व्याख्यान में वल्लभ भाई ने 4 दर्पण से लेकर हमें 9 तत्व, 12 तप और बाकी बहुत सारी बातें करते करते हमें एक ऐसी जगह पर लाकर रखा कि जिसको हम अपने रोजिंदा जीवन में उसको एक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। कि चालो, मतलब जब उन्होंने ये शीर्षक भी दिया ना कि चालो मतलब चलिए साथ में मिलकर सम्यक दृष्टि का विकास करते हैं। तो पर्युषण के समय में अगर कोई हमें कहते हैं कि चलो करते हैं, तो वल्लभ भाई की हुई बात, वल्लभ भाई ने यहाँ जो बात रखी है उसको हम सचमुच हमें लगता है एक क्षण के लिए कि ये फॉलो करने जैसा है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। और थोड़ा सा अगर करते हैं तो अपने दृष्टि में धीरे धीरे वो एक प्रोसेस हो जाएगा और प्रोसेस फिर प्रैक्टिस बन जाएगा और प्रैक्टिस हमें अपने आप एक प्रसन्नता की ओर ले जाएगा और अजीव से जीव बनने की हमारी वो प्रक्रिया हमारे जीवन में लगातार रहेगी। तो शायद हम उस सम्यक दृष्टि को, सम्यक ज्ञान को और सम्यक चरित्र को धारण कर पाएंगे। तो इस अद्भुत बात के लिए श्री मुंबई जैन युवक संघ की ओर से आप सब यहाँ जो उपस्थित श्रोताजन हैं, प्रबुद्ध श्रोताजन हैं, उनकी ओर से वल्लभ भाई आपका जितना आभार माने उतना कम है। आज की इस बात ने हमारे अंदर, जैसे कहते हैं ना कि हमको एक पुश मिला, बूस्ट मिला कि चलो ये करते हैं, ऐसी एक बात हमारे मन में एक भावना रखी है। और पर्युषण पर्व के इस दिनों में 3रे दिन पे ये बात बहुत ही उचित रूप के आपके पास से आई है। हम आशा रखते हैं अगले साल आपसे और इस तरह की बातें सुनते रहेंगे, बट इसके बीच में भी आपसे और व्याख्यान की हमारी अपेक्षा है, क्योंकि आपकी थिंकिंग प्रोसेस मुझे लगता है आज के समाज में बहुत उपयुक्त, उपयोगी और ज़रूरी है। खूब खूब आभार। સાથે આભાર માનીએ છીએ જોનીભાઈનો। જોનીભાઈ આપની ભક્તિ સંગીતથી તો અમે લગાતાર ભીંજાઈ રહ્યા છીએ અને હવે 10:30 વાગે અનાજની પ્રભાવના અને બાળકોને આપણે શિક્ષણ માટેના ચેકો આપશું। નીચે એ કાર્ય 10:30 વાગે શરૂ થશે। આપ પણ આપના આજુબાજુના વિસ્તારમાં એ વાત ચોક્કસ વહાવજો અને જે પણ આપણે આપણા સાધન મૃત્યુ માટે કરી શકીએ એ કરવું એ આપણું માત્ર ફરજ નથી, એ આપણી એક અંતરની જરૂરિયાત છે। તો એ દિશામાં આપણે સૌ સાથે મળીને કામ કરીએ। અને હવે આપણે લોકમિત્રાનો વિડીયો જોશું અને લોકમિત્રા વિશે થોડીક વધારે માહિતી જાણીએ માણીએ। આવો। જ્યારે ટેકરી હતી ને ત્યારે તો બધાને એવું જ વિચારતા હતા કે આયા શું થાય। પછી જ્યારે ચેતન્યાભાઈની આવ્યા ને પછી અહીંયા આપણે એક લાકડા ખોડીને ઝૂંપડી બનાવી, પછી ધીમે ધીમે નાનું એવું બાળ મંદિર શરૂ કર્યું। ત્યારે એ વખતે અમે હીરા ઘસતા હતા। પછી આ બાળ મંદિરનું મકાન સણવાનું
તૈયારી કરી એટલે મેં જાતે પથ્થર કાઢવા અને પછી બાળવીટીના હિંચકા ટુકડો કે આપ્યા. પછી ચૈતન્યભાઈને કે તમે આવો ને મદદ કરવા, એટલે મેં પછી રાતે ખાડા ગાયા અને આ બધું ઊભું કરીને આ ટેકરી હતી ને નોખા વિભાગ કરી અને ખોદાણ કામ કરીને પછી અમે આ સારું કર્યું. અને ઘણા લોકો તે દી ઈર્ષાળુ હતા કે આવડા લોકો બહારથી આવ્યા છે ને એ અમુક ટાઈમે આ બાળ મિત્રના છોકરાની સંખ્યા જાજી થાય એટલે બસ ભરીની તો જતા રહેવાના. આવા તે દીમાં ઈર્ષાળુ હતા અને હજી પણ છે. પણ એ વખતે અમે તો એવું વિચાર્યું હતું કે ભલે આ હિંચકા આપણે નહીં શીખી તો આપણા છોકરા હિંચકશે. અને તેમાં જ એવું જ મને અત્યારે આવું ને તો અહીંયા તો બધું હાવ જુદું જ લાગે. અને આ મારા છોકરાનો છોકરો જ છે ત્યારે હું હિંચક્યો નહીં, પણ મારા છોકરાનો છોકરો અત્યારે હિંચકે છે તો મને એવું લાગે કે મારું સપનું આમ સાકાર તો થયું. પણ ધીમે આપણે જેમ ઓલી કેરી પકાવી ને કાર્બેટરથી એ એકદમ પાકી જાય, એ સ્વાદિષ્ટ ન થાય. અને આ જેમાં એવું એકદમ સ્વાદવાળું થયું કે આ છોકરાનો છોકરો હિંચક્યો તો પ્રવૃત્તિ ધીમે આગળ વધે ને એ જ આગળ વધે, એ જ મજબૂત થાય. વાંદરો ને કીડી ચડવા મંડા સીડી કીડી હતી જાડી સીડી પડી આડી વાંદરાએ મારો ઠેકરો કીડીએ તાણો ભેકરો તમે તું નંદીએ નાવા જાતું તું લાલ સાડી પહેરતું તું ઘી ગોળ ખાતું તું હાલો, રેતીમાં રમવાનું પૂરું થઈ ગયું, કોબલો પાડવાનું પૂરું થઈ ગયું. હાલો, પોતાના વાટક્યા સરસ ધોવાના છે અને સરખી રીતે ઊંધા વાળવાના છે. હાથ પગ ધોઈ નાખો સરસ,
બધા એના પોતપોતાના રીતે. હાલો આપણે બધાને પ્રાર્થનામાં જવાનું છે. ગોળમાં બધા ઊભા રહ્યો અને ગોળમાં પછી આસન લઈ લઈને પોતાના બેસી જાઓ. વાદળે વાદળે વરાસરા, મંદે લાગી પરસ્પર, ફોરા પડશે ટપ ટપ, ઝીલીને શુલપ ક્લપા, ખારા પાણી સાગરના, મીઠા પાણી ગાગરના, વાદળે વાદળે વ્રત વ્રત, વાદળે વાદળે વ્રત વ્રત. અહીં આપણે કિલ્લોલના બાળકોને કાગળના બીડ્સ બનાવતા જોઈએ છીએ. બાળકો પોતાની જાતે કોઈક વિચાર કરે છે કે કેવો આકાર બનાવવો અને એને આધારે જુદા જુદા રંગના બીડ્સ બનાવે છે. 200, 300, 400 એવા બીડ્સ બનાવીને એમાંથી કોઈ આકાર તૈયાર કરે છે અને એ આકાર છે તે સરસ રળિયામણો આપણને સામે દેખાય છે. અહીં બાળકોની ધીરજને ધન્યવાદ આપવા ઘટે. રક્ષાબંધનની ઉજવણી અમે સમૂહમાં કરીએ છીએ. બાળકો પોતાની જાતે જુદી જુદી ગાંઠો બાળીને રાખડીઓ બનાવે છે અને એ રાખડીઓ પછી સૌ સાથે મળીને ઉજવણી દરમિયાન ભાઈઓ બહેનો સૌ પોતપોતાને હાથે બાંધે છે. લોકમિત્રા એક સુંદર પુસ્તકાલય ધરાવે છે. લગભગ 9,000 પુસ્તકો અહીં બાળકો, ગ્રામજનો, કાર્યકર્તાઓ માટે ઉપલબ્ધ છે. અહીં 25 પ્રકારના સામયિકો પણ આવે છે. પુસ્તક તે જ્ઞાનની તરસને छिपाવવા માટેની જગ્યા છે. અભ્યાસુ વ્યક્તિને જ્ઞાનની તરસ ન હોય એવું તો બને નહીં. લોકમિત્રાના પુસ્તકાલયમાં જુદા જુદા 17-18 વિભાગો છે. એ બધા વિભાગોમાં જાત જાતના પુસ્તકો છે. ક શાળા તે લોકમિત્રાનું વિશિષ્ટ કેળવણી કદમ છે, જેમાં અભ્યાસ કેમ કરવો તે પ્રથમ શીખવાય છે. તેથી અભ્યાસ કરનાર પોતે શું ભણવું છે તે નક્કી કરી શકે છે. વિષયો મારફતે નહીં, પરંતુ સત્રો મારફતે અભ્યાસ થાય છે. જીવનની સમગ્રતાને પામવા માટેનું શિક્ષણ એટલે ક શાળા. તેના માધ્યમો વાંસકામ, કાચલીકામ, ફોટોગ્રાફી, સંગીત કે એવા જાત જાતના હોઈ શકે છે. પરંતુ અંતે તો તે જીવનની કેળવણીના લક્ષ્ય તરફ જાય છે. અભ્યાસ કરનાર પોતે નક્કી કરે છે કે પોતાને શું ભણવું છે, કેવી રીતે ભણવું છે, શું બનાવવું છે, કેવી રીતે બનાવવું છે, કોણ પોતાના શિક્ષક હશે. આ બધી વાતો જેટલી વિદ્યાર્થીઓ નક્કી કરે એટલો એનો અભ્યાસ રસ મળે. સારે રે સારે ગ ગ રે ગ મ ગ મ પ પ મ પ ધ ધ ની રે ધ ની સા સા ની સા રે રે સા સા ની રે સા ની ધ ધ ની ધ પ પ ધ પ મ
રસોડું. આ છે અમારું રસોડું, શાળાનું રસોડું. આ પેટ ભરવાની જગ્યા કે જીભની તૃષાને સંતોષવાની જગ્યા તો છે જ, પણ અહીં તે એક વિશિષ્ટ સંદર્ભ સાથે છે, અને તે સંદર્ભ છે રસોડું એટલે સ્વાવલંબનના પાઠ શીખવનાર જગ્યા. રસોડું એટલે વિવિધ વિષયોનો અધ્યયન કરવાની જગ્યા. એટલું જ નહીં, પણ સમૂહ જીવનની સાધના કરવાનું કેન્દ્ર પણ છે. આ ગ્રામન છે, અને ગ્રામન છે એ ગામ લોકોનું છે, અને અત્યારે આની દેખભાળ લોકમિત્ર સંસ્થા રાખે છે. અને દર વર્ષે નવા નવા જે જંગલી ઝાડવા છે એ લાવીને વાવીએ છીએ. ગયા વખતે 98થી 100 લાવ્યા હતા, એ વાવ્યા છે. ઉનાળે વેસાતા ટાંકા લાવીને આમાં નાખીએ છીએ અને પાંજરા મૂક્યા છે. આ જે કાંઈ ઘાસ થાય એ ગ્રામ લોકો વાઢાઈ અને ખીહેરના દિવસે પોતાના ઢોર આજુબાજુ લાવીને નાખે છે. એમાં ઢોર દીઠ હુકલ ઘાસ અમે 10 કિલો દઈએ છીએ, પણ પોતાની જાતે વાઢે જાય અને લઈ જાય. એવી રીતે આ ગ્રામની દેખભાળ લોકમિત્ર રાખે છે, ગામ લોકોય રાખે છે. અને અત્યારે આ બધું ઊભું ને આ 2 વર્ષના બધા મોટા ઝાડવા, વન્ય જે ઝાડવા છે એ વાવ્યા છે. જંગલી ઝાડવા, ફળાવ ઝાડવા આમાં નથી વાવ્યા, અને જંગલી ઝાડવા છે. પણ ઉનાળામાં પાણી ઓછાના હિસાબે જંગલી ઝાડવા વાવવાથી એ જો સોટે જાય તો રહી જાય એવું થાય. નકર આમ હોય ચોમાસા પૂરતું પાણી રહે છે, પણ ઉનાળા પૂરતું પીવાનું નથી રહેતું, એટલે મળતું નથી. પણ વેસાતા ટાંકા લાવીને મહિનામાં 3 વાર એવી રીતે પાઈએ છીએ. આ ઉમરો છે ને 2 વર્ષથી મોટો જબરો ઉમરો ઉતાવળું જાય. વાલા તું આ બધા રાજસ્થાન ગયા પ્રવાસે, ત્યારે તે શું જોયું, શું શીખ્યા, એકાદી વાત તો કરી ભલામણા. અમે લોકમિત્ર સંસ્થામાંથી પ્રવાસમાં રાજસ્થાન ગયા હતા, ત્યારે અમે દેશી જુગાડ જોયું. ભંગારમાંથી જે સારી એવી વસ્તુ બનાવે એ, અને હલ્દી ઘાટી અને એ બાજુ બધે જોવા ગયા. તીકડે એક દેશી આપણે જૂનવાણી પહેલાંના જમાનાનું ઓલો કોહ કે એ બળદથી પાણી બહાર ખેંચે છે, એ જોયું. મેં એવું સાંભળ્યું છે કે રાજસ્થાનનો ગોળ કેવી રીતે બનાવે છે, એનો રસ કેવી રીતે કાઢે છે, એના તાવડા કેવા હોય છે, એ કાંઈક મેં સાંભળ્યું. રાજસ્થાનમાં ગોળ બનાવે છે એ હાવ પ્યોર દેશી બનાવે છે, અને લાકડાના શીસોડાથી ને બળદથી ને એનું પિલાણ કરીને રસ કાઢે છે, અને વગર દવા વગરનો ગોળ બનાવે છે, ને એક તાવડો જ હોય છે. આખો દિન કેટલો ગોળ બનાવતા હોય? અમે ત્યાં ગયા હતા ને આખો દિવસમાં તો એ એક કુંડી કે એટલે કે 40-45 કિલો જ નીકળે એક જ દિવસમાં. એવો ગોળ આપણે અહીંયા બનાવીએ છીએ? એવો ગોળ તો આપણે અહીં બનાવી તો એકવી, પણ આપણે આગળ તો અત્યારે એ શીસોડો અહીં હાજર તો ન હોય ને લાકડાનો. એટલે કે ના કાંઈક સજીવ ખેતીની વાત સાંભળી હતી. સજીવ ખેતી વાળા કાંઈ બનાવે છે કોઈ કે કરે છે? હા, સજીવ ખેતી તો ત્યાં બનાવે છે. એમના ઘર પૂરતું શાકભાજી વાવે અને હાવ ઓર્ગેનિક દવા વગરનું પકવે અને એ એના ઘરે વાપરે. આપણે તો અહીં આપણે કોઈ સજીવ ખેતી કરતા નથી, પણ આપણે એવું નક્કી કર્યું કે આપણે ઘર પૂરતું શાકભાજી જેવા આપણે જરૂરિયાત હોય એટલું તો સજીવ ખેતી કરવી.
મારું નામ વસંતબેન સોહાણ સાયસ્યા. વસંતબેન, તમે આ મટકા ટાંકો તમારા ખેતર પર બનાવવાનું કેમ જરૂરી લાગે છે? અમારે રહેવાસી વાડીએ રહેણાંક છે એટલે અમારે પાણી પીવાનું મોડું પડતું કૂવાનું, એથી અમારે આ મટકા ટાંકાની જરૂર પડી. તમને આ મટકા ટાંકો બનાવવાથી શું ફાયદા થશે? અમને ફાયદો થાય છે, અમે વેસા તો ટાંકા મગાવતા, ટીપણા ભરવા જતા, એ ડીઝલ ભાડું આપવું પડતું, તો એ અમારે ટાઈમ બસ્યો, ભાડું નહીં થાય અને વરસાદનો પાણીનો આ સંગ્રહ થાય છે પીવા માટેનું હાલે. વસંતબેન, આવો ગોળ ટાંકો જ બનાવવાનું કેમ તમને પસંદ કર્યું? વર્ષો પહેલા અમારા ગામમાં ટાંકા આવા બનેલા છે, તેથી અમે એ જોયા અને એ વપરાશી લોકો કરે છે એટલે અમને પણ એ ગમ્યું, એટલે અમે આ ટાંકાની માંગણી કરી. અને આનું સુવિધા, આનું કામ અમને બહુ ગમે છે અને આની મજબૂતાઈ પણ સારી છે અને કામે સસ્તાનું સારું છે. અરવિંદભાઈ, કયું ગામ? મારું ગામ ઢોકળા. મારું નામ સોમાણી અરવિંદભાઈ તેજાભાઈ. તમને આ લોકમિત્ર મારફતે જે કાંઈ મકાન મળ્યું એ મકાનનો કાંઈ તમને ફાયદો થયો? એમાં લોકમિત્રએ કંઈ શું આપ્યું, તમે શું કર્યું? હા, લોકમિત્રમાંથી મને મકાન આપ્યું, એમાં મારો ફાયદો થયો. પહેલાં રહેવા મકાન નહોતું, હવે રહેવા મકાન થઈ ગયું અને એ લોકોએ કાટમાળ, નળિયા, બાડી બાયણું એ બધું આપ્યું અને મજૂરી અમારી માથે હતી. અત્યારે તમારો કેટલા પરિવારનું કુટુંબ આ મકાનમાં રહ્યા? અમારે અત્યારે 4, 2 અમે, 2 છોકરા. પહેલાં સિમેન્ટ, રેતી એ બધું અમારું અને લોકમિત્ર એ લાકડા, વાહડા, નળિયા, બારી બાયણું એ એનું હતું. મજૂરી અમારી, કોઠો અમારે ઊભો કરી દેવાનો. મિત્ર સંસ્થા દ્વારા તમને હંસો આપવામાં આવ્યો છે, તો એમને તમને શું ફાયદો થયો છે? એનાથી અમને ઘણી સિલાઈ કામ કરીને મજૂરી ગુજરી રહી છે. હા, અને એમાં તમે કેટલા રૂપિયા ઘરના નાખ્યા? ઘરના 3000. 3000 રૂપિયા. અને કેટલા રૂપિયાનો હંસો આવ્યો? 14000. હા. ગુંદાળા, તાલુકો વિછિયા, જિલ્લો રાજકોટ. સાદોભાઈ લીંબાભાઈ મકવાણા. મને લોકમિત્રમાંથી ગાય મળેલી છે. ત્યાં સુધી મારે કોઈ દૂધાણું હતું નહીં અને ત્યારે ગા મળે એટલે ગા પણ ગા લીધી હતી અને મારા ખીરી પીયા અને મારા છોકરાને મેં બધા દૂધ ભેગા થયા હતા. દૂધમાં બહુ સારું રહ્યું હતું અને પછી વહેલો પણ એનો થોડોક ગાયનો વીચ્યો છે. હાલ મારી પાસે 2 ગાયો હતી. મારું નામ મનસુખભાઈ લીંબાભાઈ મકવાણા, હું ગુંદાળાનો છું. વિતરણ આ લોકમિત્રા ઢેઢુકી દ્વારા જે વિતરણ કરી બહુ સારી રીતે કરી હતી. માલને નિભાવવા માટેનું અને જે માલ જે અમે નિભાવી શક્યા, જો એની સહાય ન હોત, એને જો કાંઈ અમને ન સહાયક બન્યા હોત તો એવું બને કે અમારી પાસે પશુ જે હાંકવા લાયક બળદ કે જે દોવા લાયક ગાય છે અમે ન રાખી શક્યા ગામમાં. કાર્યકરો અને 11 ગામમાંથી બધા કાર્યકરોને અમે પૂછ્યું તો એ લોકો એમ કહેતા હતા કે આ કામ બહુ સારું અને સારી રીતે કર્યું. એક માલ દીઠ 1.5 કિલો એમ કંઈક ખાણ આપતા ને પછી જે આવતું ભૂસું આપતું બનાવેલું એ આમ કિલ્લા ઉપર આપતા એટલે એ ઘણું થઈ જતું. મારું નામ હેમંતભાઈ રત્નાભાઈ સાંકળિયા, ગામ મારું ઢેઢુકી છે. લોકમિત્રા સંસ્થા ઢેઢુકીમાં જે કામ કરે છે એના થ્રુ એવી એક યોજના બહાર પાડવામાં આવી હતી કે શાક કટર, જે આમાં તમે જે મોટો સારો છે, જુવાર છે કે બરુડું છે કે એવું જે મોટું ઘાસ હોય એ આની અંદર નાખીએ એટલે ઝીણો હાવ કૂસો કરી નાખે છે. તો એવો જે એક યોજના હતી. આમ જુઓ તો આ જે સાપ કટર છે એની લગભગ 25ની આજુબાજુ કિંમત છે, પણ આપણે લોકમિત્રા સંસ્થા દ્વારા ની યોજના દ્વારા આપણને આ 12,500 રૂપિયામાં આ જે સાપ કટર છે એ મળ્યું છે. આના જે ફાયદા છે એ જે મેં તમને અગાઉ જેમ કીધું એમ, જો આપણે આખો જ સારો પશુને આપીએ તો એ મોટા ભાગનો વેસ્ટ જાય છે અને પશુને સાવવામાં પણ નુકસાન કરે છે. કે આ સાપ કટરમાંથી આપણને જો તમને દાખલા તરીકે જે વધારે લાંબી કે એવી નીડ હોય તો એને સાચવવામાં અઘરું પડે, પણ જો આની અંદર સાપ કટર કરીએ તો એ થોડીક જગ્યામાં પણ એ વ્યવસ્થિત સચવાઈ રહેશે અને આખું વર્ષ એને ગમે ત્યારે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આમાં લીલો સારો પણ આપણે
કટિંગ કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે આ જે મકાઈ છે કે જુવાર છે એ લીલો સૂકો બે સારો આપણે આમાં કટિંગ કરીએ છીએ. મારું નામ હામદભાઈ જાડા, મારું ગામ ધારે, તાલુકો ચોટીલા, ડિસ્ટ્રિક્ટ સુરેન્દ્રનગર. તમે સજીવ ખેતી કેટલા વર્ષથી કરો છો? હું 2001થી કરું છું. અને સજીવ ખેતીમાં તમે કયા કયા પાક વાવો છો? મગફળી વાવી, કપા વાવી, તલ વાવી, બાજરી, બધા પાક લેવી છીએ. અને પછી શિયાળામાં ઘઉં, શેણા, જીરું એવો પાક લઈએ. અને સજીવ ખેતીમાં તમને મુશ્કેલી કેવી કેવી પડે છે? મુશ્કેલી તેલ સિવાયની બજારમાં મુશ્કેલી છે. બજાર ઊભું નહીં, બજારમાં કોઈ માગતું નથી એટલું બધું, બજાર નથી મળતું. અને સિટીથી અમે બધા દૂર આખા છીએ એટલે આ કોઈ લેવા ન આવે એવું થાય છે. એટલે બજારની કંઈક વ્યવસ્થા થાય ને તો અમુક ખેડૂતે મૂકી દીધી બજારને ઓલી. એટલે આવા પ્રશ્નો, બજારના પ્રશ્નો મોટા છે. અને અમુક અત્યારે બહુ ખોટા હોય ને સડી ગયા છે એટલે કોઈને વિશ્વાસ નથી કે આ ઓર્ગેનિક હશે કે કેમ. એમ ગ્રાહકને બધાને અસંતોષ હોય એવું છે. કારણ કે સાચા કોણ ખોટા કોણ આમાં કોણ નક્કી કરે. એટલે આવી બધી મુશ્કેલીઓ છે ને આ બધી મુશ્કેલીઓ સાચા ખેડૂત નડે છે. રોગ જીવાત આવી જાય તો તમે એના માટે કયા કયા પ્રયત્ન સજીવ ખેતીને અનુરૂપ હોય એવા? એટલે મગફળીમાં તો આમ ખાસ કંઈ કોઈ જીવાત આવી જ નથી. અમારે ત્યાર સુધીમાં કાંઈ નથી આવતી. પણ બીજા બધા પાકોમાં આવે છે, ઘણા બધા પાકોમાં. જીરામાં આમાં મુશ્કેલી પડે છે પણ એ હવે અમે ટેવાઈ ગયા છે મુશ્કેલીમાં લડી લેવાનું. એ ઓછું ઉત્પાદન આવે તો વાંધો નહીં એમ. અને એને જે મને સંતોષ મળી જાય છે, મને ક્યારેય એવું નથી થતું કે સજીવ ખેતી મૂકી દેવી છે. લોકમિત્રા સંસ્થા દ્વારા સજીવ ખેતી મંડળની એક શરૂઆત કરેલી છે, એમના તમે સભ્ય છો. તો જે સજીવ ખેતી ગ્રુપ છે એમના વિશે તમે વાત કરો. સજીવ ખેતી વિશે તો અમે ગ્રુપ હતું 8-9 વર્ષ થઈ ગયા શરૂ કર્યું એને. પણ એમાં બજાર ન મળવાથી બધા અમુક નીકળી ગયા છે. પણ હું અત્યારે જે સજીવ ખેતી જ કરું છું, બરાબર. અને સંસ્થા દ્વારા લોકમિત્ર સંસ્થા આપણને અમને સહાય રૂપિયા ટપક લઈ દીધી છે. ટૂંકમાં વગર વ્યાજે હપ્તે પૈસા પાછા દેવાના એ રીતે ખૂબ મદદ કરે છે સંસ્થા. સજીવ ખેતીના અત્યારે તમે કયા કયા પાક વાવો છો? મગફળી, ચણા, ઘઉં અને કઠોળ ખાવા માટે. અને વેચાણ માટેની પ્રોસેસ તમે શું શું કરો છો? તેલ તો જાણે વેચાય છે થોડું ઘણું, બરાબર. બાકી પાતરમાં ચણા ને એવું તો હું માર્કેટમાં જ વેચું છું એડમાં. બાકી એનું કાંઈ બજાર આવતું નથી. કોઈ 5 કિલો ને 2 કિલો એવા મગાવે તો એવું કાંઈ અહીંથી જસદણ જાય તો 25 કિલોમીટર થાય, એમાં પાર્સલ કરવાના આ કરવાના, એટલે એ અમને પોહાતું નથી. સજીવ ખેતી શું કામ કરો છો? સજીવ ખેતી તો જમીન સુધારવા માટેની અને આપણે સારું ખાઈ ચોખ્ખું કેમિકલ વગરનું, બસ એ કારણે જ તે. સજીવ ખેતી કરો છો ત્યારે તમને કઈ કઈ તકલીફો પડે છે અને એના માટેના શું શું તમે પ્રયત્ન કરો છો? સજીવ ખેતી કરીએ છીએ એમાં પહેલાં તો નિંદામણ જ બધા લોકો બાસાલીને સાટીને ખડ નાશ કરી નાખે. અમારે તો કમ્પ્લીટ દાળિયા કરીને નીંદાવાનું તે હાથે અથવા દાળિયા કરી. અને પહેલાં તો જાણે ઈવળ આવે તો બધા દવા છાંટતા હોય એને કમ્પ્લીટ હોય. મારે મારા ભાઈને એક જ ચેઢે છે, કારણ કે એ દવા છાંટતા હોય એને સારું બધું હોય અને મારે ઈવળી ખાતી હોય બધું હોય. પણ એમાં કાંઈ જવાનું જ નહીં, આટો જ નહીં મારવાનો, તો ઓટોમેટિક વહી જાય છે. ગળોય વિયો જાય છે ઓટોમેટિક. જાજો કાંઈ ફેર પડતો નથી. વેચાણ માટેની સંસ્થા મહેનત કરે છે ઘણી બધી, પણ ધીરે ધીરે થાય છે એવું લાગે છે. પણ સંસ્થા ઘણું અમને ઉપયોગી આપે છે, કારણ કે માંડવી ફોલવાનું નાનું મશીન આપે છે, હલર નાનું એવું, એટલે ઘર પૂરતી માંડવી ફોલાઈ જાય. હાંતીડા આપ્યા છે, એવું બધું ઘણી બધી સંસ્થા મહેનત કરે છે અમારી માટે. અમે એવી આશા રાખીએ છીએ કે આવી મહેનત અમારે કરતા જ રહે સંસ્થા, અને ખેડૂતોને ભાવ પૂરતા મળે એવી મહેનત કરે.